Thank you so much, Richi. A very good morning to all of you. Good morning, Jen sir. Good morning, Ashish sir. Good morning, everybody Good who morning, has ma'am. taken out time to join us today. And Ashish sir is with us today. He actually does not require any introduction, so I'll not waste my time in that because he is very much a part of MSMS family. And sir, pleasure to have you once again here amongst us to deliberate on this very, very important topic of today, that is the POXO Act. यू नो जितनी भी मेरी डिस्कशंस हुई कुछ लोगों के साथ पॉस्को एक्ट के बारे में लेकर, तो यूजुअली कि रहता है कि व्हाई शुड वी डिस्कस अबाउट इट. You know, this does not happen in our societies, this does not happen in our school. So we Indians perhaps have this denial mode that yes, ये मेरे आसपास तो नहीं होता, तो इसलिए मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपने बच्चों को इन चीजों के लिए या मुझे अपने आप को इस चीज के लिए एक्सपोज भी नहीं करना. So let us not talk about these issues. I think this is the right time when, as educators, as teachers, it is very, very important that we openly talk about these issues, and we should be aware about all the issues that are happening around us also. So एक तो definitely law की requirement है that we should all be trained for this act. Another thing is that I also feel that this is a very significant step in strengthening ourselves. You know, if, for example, if we find ourselves in this unpleasant situation someday, at least I should not be caught unawares. At least I should know what should be my plan of action. I should know कि मुझे अब इसके आगे क्या करना है. तो वहां पर जो स्ट्रेंथनिंग है वो आज हम करने की कोशिश कर रहे हैं. और डेफिनेटली आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू प्लीज टॉक, डेलिब्रेट, डिस्कस as and when required. Please do not take any apprehensions, any doubts back with you from this workshop. ये जो वर्कशॉप है ये हम एक प्लेटफॉर्म हमने ऐसा ढूंढा है कि जहां पर हम आराम से खुद आपस में इन चीजों के बारे में बात कर. एक और चीज that everybody feels that now it is an online mode and therefore actually this is not required. I request you to please see the news also, the things that are happening nowadays. Tamil Nadu Chief Minister has recently said that they are going to expand the scope of this act and make sure that it goes for online classes also. So this is going to come to us in another with another dimension also. So we have to be prepared for that also. And of course, as online, सबको पता है online में बहुत सारी चीजें होती भी हैं. Of course, you know, touch wood, all of us have been spared and nothing unpleasant and unsorted has happened over here. But as I said, this is a program to strengthen ourselves so that we know if we are caught in any situation, what are we supposed to do. So let me not take more of your time, but only one thing I would end with: more questions, more discussions, and the better it is going to be. So thank you so much. Over to you. Thank you so much, ma'am. As rightly said by Ruchika ma'am, child sexual abuse is a major concern that is increasing day by day in India. And to fight child sexual abuse, it is important that we all take responsibility in our own various ways to combat the menace. In order to effectively address the heinous crimes of sexual abuse and sexual exploitation of children through less ambiguous and more stringent legal provisions, POXO Act has come into effect from 14 November 2012. POXO stands for Protection of Children Against Sexual Offences. It is monitored by the National Commission for Protection of Child Rights, NCPCR, to ensure safety of students and create awareness about the sexual assault and sexual harassment. POXO Act awareness is made mandatory for every school by the CBSE. I would now like to invite the resource person of today's workshop, counseling psychologist, Mr. Ashish Agarwal. Sir, you hardly need any introduction. Mr. Ashish is not only the founder of Simon, but also alumnus of Mahavir Senior Model School. He is an expert counselor and also a motivator. We are looking forward to hearing from you, sir, on this very sensitive and important topic, POXO. Over to you, Ashish, sir. Thank you, ma'am. Good morning to Jain sir, SL Jain sir. Good morning, Ruchika ma'am. And good morning to all the teachers who are present here. Now, I would straight come up to the point here.
POCSO, when we talk about, or per se any amount of sexual abuse or sexual mishap, as a psychologist, when I view my last 20 years of experience of counseling, I believe almost all, about 40% of all anxiety cases have their root somewhere in mishaps pertaining to sexual aspects in their early life or childhood. Now, when we think and talk about POCSO, many things come to our mind, but one thing is for sure, जब तक हम दूसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें ज्ञान देना या ज्ञान लेना बहुत अच्छा लगता है, but when we really encounter such a situation, we really find ourselves standing on crossroads. हमें नहीं पता होता क्या करना है, कैसे करना है, किसको अप्रोच करना है, किसको बताना है, कहाँ से मदद आएगी और कैसे जो सिचुएशन है उसको संभालना है। जब मैं इस टॉपिक के बारे में बात करने की तैयारी कर रहा था, तो क्योंकि ये मेरा एक इंटरेस्ट एरिया भी है, आई एम deeply impacted by cases of sexual abuse, and this is one of my research areas where I'm working. तो मुझे लगा कि मैं आज पॉक्सो को एक नए शब्द के रूप में डिफाइन करने का प्रयास करूं। पॉक्सो का मीनिंग है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, बट जब हम पॉक्सो के बारे में देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसी जुड़ी हैं कि अगर हम सिर्फ कानून के तौर पे पॉक्सो को एक देखते हैं तो ये एक पोस्ट इवेंट मेजर है, यानी घटना घट गई उसके बाद हम क्या क्या कर रहे हैं। पर मुझे लगता है एज अ कम्युनिटी, एज टीचर्स, एज पेरेंट्स, हमारा बहुत कुछ ऐसा है जो पॉक्सो इस इवेंट से पहले यानी प्री इवेंट प्रिवेंशन की तरफ ध्यान जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पॉक्सो को समझने के लिए हमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल और बहुत सारे लीगल पहलुओं पर विचार करने की जरूरत है। और आज मैं कोशिश करूंगा, इसीलिए जो मेरी टॉक है मैं इसको बहुत सिंपल और बहुत नॉन टेक्निकल रखूं, बट एट द सेम टाइम कोशिश करूं कि हम हर स्तर पर इसको टच कर पाएं। तो पॉक्सो के बारे में जब पहली बात करते हैं तो सबसे पहला चीज आता है, क्या पॉक्सो एक रियल नीड है? मेरे अनुभव में एज अ साइकोलॉजिस्ट, यस इट इज। बट आप सबसे, क्योंकि आप शिक्षा के जगत से जुड़े हैं, आप बच्चों से जुड़े हैं, क्या आपको लगता है कि पॉक्सो एक समाज की जरूरत है? क्या आप अपने कुछ अनुभव यहाँ मुझसे शेयर करना चाहेंगे? Anybody who would like to discuss a real live case without discussing the name of the person involved, आप सिर्फ घटना के बात को या उससे जुड़े हुए प्रभावों को आप डिस्कस करना चाहें तो इट विल हेल्प मी सेट अप द डिस्कशन। एनीबडी? आपको क्या लगता है, पॉक्सो क्या हमारी जरूरत है हमारे स्कूल के लिए, हमारे समाज के लिए? क्या पॉक्सो एक रियल टाइम नीड है? दैट इज द क्वेश्चन। यस सर, बिल्कुल है। जी मैम, कोई आप घटना या कोई अनुभव शेयर करना चाहेंगे? नहीं सर, ऐसी घटना तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इसमें जानकारी हम जितनी हासिल कर सकें ज्यादा अच्छा रहेगा सर। जी, कोई और सदस्य जो कोई ऐसी घटना शेयर कर सके जहां उसे लगा कि वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया या अच्छे से हैंडल कर पाया एंड इट कुड मेक अ डिफरेंस? Sir, for quite a few incidents, we have wondered whether that is the legally correct procedure or am I missing out on something? So for several incidents that had happened, and of course we do not know कि इसके आगे अब क्या करना चाहिए, या इसकी इंक्वायरी ठीक हुई या नहीं हुई, या जो मैंने स्टेप लिया पेरेंट को इन्फॉर्म करने का या किसी और को इन्फॉर्म करने का, is it in my domain or not? Is it the right step or not? That has happened. जी, कोई और? I will change my question. Have you seen sexual abuse or exploitation happening around you?
सर वैसे तो ये सारी समस्या सभी जगह है हमारे आसपास, लेकिन इसी को लोग व्यक्त करने में बहुत हिचकिचाते हैं। हमारे आसपास ये सभी जीवन में आम हो चुकी हैं सभी बातें, लेकिन इसके लिए अवेयरनेस या उसकी सही एक जानकारी ना होने की वजह से, शर्म झिझक की वजह से लोग इससे चर्चा करने में शर्माते हैं, या यदि कोई व्यक्ति चर्चा भी करता है तो उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। तो सही मार्गदर्शन की हम आम सभी जनता में अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। घबराते हैं लोग। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपसे अपने 2 अनुभव शेयर करना चाहूँगा सबसे। क्योंकि जब मैंने अपनी काउंसलिंग की यात्रा शुरू की लगभग 18-19 साल पहले, तो ये 2 घटनाएँ ऐसी थी जिन्होंने मुझे झकझोर के रख दिया था। आई मीन मेरे को क्यों लगा कि मुझे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में कुछ करने की या और अच्छा रिसर्च करने की ज़रूरत है, तो उसका बीज शायद इन 2 घटनाओं से पड़ा। पहली घटना है लगभग 15 साल पहले की। मेरी एक स्टाफ थी जिनको हमने न्यूली हायर किया था फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड, एंड उन्होंने अचानक एक दिन 4 दिन की छुट्टी ली। जब वो ज्वाइन करके वापस आई 5वें दिन, तो उनसे सवाल पूछा हमने कि छुट्टी क्यों ली? तो उन्होंने कहा मुझे दौरा पड़ा था। तो सिंस वी आर इन दी मेडिकल फील्ड, तो मैं थोड़ा कंसर्न्ड हुआ। मैंने कहा फिर आपने क्या मेडिसिन ली, किस डॉक्टर को दिखाया? तो उसने कहा नहीं वो पापा जी ने भभूत लाके दी थी, वो मैंने खा ली और मैं अब ठीक हूँ। बट आई वाज डिससैटिस्फाइड, तो मैंने हमारे एक न्यूरोलॉजिस्ट मित्र हैं, मैंने उनके पास उनको भेज दिया फॉलो अप के लिए। और जब ये न्यूरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट मेरे पास आई, तो मैं अबाक रह गया। न्यूरोलॉजिस्ट ने मुझे ये रिपोर्ट किया कि परहैप्स दिस चाइल्ड इज बीइंग सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड। उन्होंने लिख कर दिया कि ये बच्चा, इसको कोई दौरा नहीं पड़ता और इसको ये बार बार अपने ग्रोइन एरिया में या थाइज एरिया में पेन कंप्लेन करता है और उसको वहां पर काले निशान पड़ते हैं हर अटैक के बाद, और इसको अपना कोई भी दौरा याद नहीं है और इसको सिर्फ वीकनेस रहती है। और जब इसको हमने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया और उस बच्चे से भी पूछा, तो सेक्सुअल अब्यूज की इतनी घिनौनी एक कहानी हमारे सामने आई कि जिसको देख के वाकई हमें लगा कि क्या इस तरह की भी इंसानियत समाज में हो सकती है। दिस गर्ल was living with her stepfather, and at the age of around 13 her mother died, and up till that time everything was okay, but इसको 16 साल की उम्र से दौरे पड़ने शुरू हुए और जब ये हमारे पास आई थी तब ये लगभग 19 साल की थी। तो almost about 5 years the child was exploited by the stepfather, और उस चीज को कवर करने के लिए वो उसे दवाइयां मिला करके और उसको दूध में मिला करके रात को देता था। तो ये एक चीज यहाँ पर आई। इसी प्रकार से एक दूसरी घटना मेरे साथ घटी थी लगभग 8 वर्ष पहले। एक बच्चा, एक लड़का मेरे पास लाया गया जो कि 11 साल का था और उस बच्चे को पैनिक अटैक्स आते थे। मतलब जब उससे बात करी, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, उसके इंटेलेक्चुअल पॉइंट्स बिल्कुल ठीक थे, बट जब वो पैनिक अटैक में जाता था तो वो एक लड़की की तरह से बिहेव करने लगता था। ये टिपिकली रिपोर्ट थी। तो इन्वेस्टिगेशंस करते हुए मुझे ये समझ में आया, जब उस बच्चे को मैंने भावनात्मक रूप से अपने से जोड़ा और उसने अपनी सारी बातें शेयर करनी शुरू करी, तो ये बच्चे को 8 साल की उम्र से उसकी एक मौसी, जिसको कि उसकी मम्मी काम पे जाते हुए केयर टेकिंग के लिए छोड़ के जाती थी उसके पास, ये उस मौसी के द्वारा सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और उसको साइकोलॉजिकली इतना मोल्ड कर दिया गया था कि जब ये बच्चा अपनी उस अवस्था में होता था तो उसे लगता था कि वो एक लड़की है। तो ये 2 घटनाएं ऐसी थी जिन्होंने मेरा परिप्रेक्ष्य इस तकलीफ के प्रति पूरी तरह से बदल दिया। पिछले करीब 10-12 साल में मैंने कई केस ऐसे हैंडल किए हैं, बट ऑफ लेट जब मैंने साइकोलॉजी की पढ़ाई करी और आगे फिर पीएचडी के लिए मन बनाया, तो मुझे लगा इस तरह के केसेस के अंदर रिसर्च करना मेरे लिए ज़्यादा मुफीद सब्जेक्ट होगा। तो मैं, ये मेरा एक इसीलिए चिंता और
चॉइस का विषय दोनों है कि ये घटनाएं कैसे घटती हैं, कैसे हमारे बीच में ये घटनाएं घटती हैं, और क्यों और कब हमें क्या करना चाहिए, इस दिशा में हमें चलना चाहिए। तो मैं चाहूंगा एक बार स्क्रीन शेयरिंग शुरू की जाए। नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसा मैंने बताया, पॉक्सो का मीनिंग है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, एंड मैंने आपका पर्सपेक्टिव भी समझने की कोशिश की और अपने भी कुछ अनुभव आपसे साझा किए। तो अब इसको और गहराई से देखते हैं कि पॉक्सो को हमें और किस तरह से समझने की आवश्यकता है। गिव मी द नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये हमारे समाज का एक टैबू सब्जेक्ट है। इसके बारे में बात करना इज लाइक हाउ इट इज लॉट ऑफ ifs and buts involved in this. या सबसे पहला, जब भी कोई इस तरह की घटना घटती है हमारे आसपास, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हम सब किसी ना किसी फॉर्म में सेक्सुअल ऑफेंसेस को अपने आसपास घटते हुए देखते भी हैं और उससे मुंह भी मोड़ लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहला आता है फियर ऑफ स्कैंडलाइजेशन। हमें लगता है दैट इफ वी टेक अप द फर्स्ट मूव इट विल ब्रिंग अस बैड नेम। हम कहीं ना कहीं एक स्कैंडल से जुड़ जाएंगे जो कि हमारी अपनी शायद स्टैंडिंग को या हमारी अपनी साख को गिराएगा। दूसरा जो प्रमुख पहलू है जिस वजह से एक आम आदमी, एक आम टीचर, एक आम पेरेंट अवॉइड करता है, दैट इज इग्नोरेंस अबाउट हाउ टू हैंडल। क्योंकि किसी भी ऐसे विषय को हैंडल करते वक्त तीन पहलू, लीगल, मेडिकल एंड मॉरल, ये तीन पहलू जो हैं, ये इनको अच्छे से व्यक्त कर पाना, समझ कर पाना और इनको कोऑर्डिनेट कर पाना शायद सभी की नेचुरल स्वाभाविक ट्रेनिंग इस चीज के लिए नहीं होती। तीसरी चीज जो मैंने अनुभव की है अपने 15-20 वर्ष के अनुभव में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिस्टमिक प्रेजुडिस वर्सेस सॉल्यूशन, ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहता है। क्योंकि जहां भी एक पावरफुल व्यक्ति जो कि इस अपराध में शामिल है वो इन्वॉल्व होता है, तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम को ट्वीक करने की कोशिश करता है और इस वजह से कहीं ना कहीं एक सिस्टम का बायस बना रहता है कि घटना को दबाया जाए या उसको माइल्ड कर दिया जाए, रादर देन उस घटना के प्रभावों को रोका जाए और उसके आगे होने वाली चीजों को प्रिवेंट किया जाए, उस तरफ से ध्यान हटा दिया जाता है। तो दीज आर दी थ्री बेसिक रीजंस व्हाई परहैप्स ऐसी घटनाएं अक्सर धुंधले में रहती हैं, कभी भी सफाई से सामने नहीं आ पाती। आप अपने आसपास भी देखेंगे तो चाहे आरुषि तलवार का केस हो, चाहे प्रद्युम्न का गुड़गांव वाला केस हो, चाहे ऐसा कोई भी केस रहा हो, हम एज अ सोसाइटी हम उस घटना को पूरी तरह से प्रकाश में लाने से शायद डरते हैं या तैयार नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पॉक्सो से जब हम बात करते हैं तो इससे दो डायमेंशंस जुड़े हैं। गिव मी द नेक्स्ट पॉइंट ऑल्सो जी। तो पॉक्सो में दो डायमेंशन है, वन इज टू प्रिवेंट sexual abuse and second is to provide punishment for sexual abuse. Now that way it becomes two-pronged thing. One is related with attitude towards POXO and second is the act itself per se, the legal aspect. तो पहले मैं एटीट्यूड की बात करता हूं। कहीं ना कहीं जब हम पेरेंट, फर्स्ट पेरेंट की बात करें, परिवार और पहला मतलब जब ओरिजिनल पेरेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर और टीचर्स जो कि सेकंड पेरेंट कंसिडर किए जाते हैं, इन दोनों ही रोल्स में दो चीजों का कॉन्फ्लिक्ट रहता है, वन इज नॉलेज एंड सेकंड इज अथॉरिटी। जब एक पेरेंट की तरफ से बात की जाए पॉक्सो के प्रति, तो कहीं ना कहीं पेरेंट को नॉलेज कम और अथॉरिटी ज्यादा है अपने बच्चे पर, और वहीं जब टीचर यानी सेकंड पेरेंट की बात करते हैं तो टीचर की नॉलेज थोड़ी ज्यादा है बट उसे लगता है कहीं ना कहीं उसकी बच्चे पर अथॉरिटी कम है। तो ऐसे में
पेरेंट यूजुअली गिल्ट के पैराडाइम से ऑपरेट करता है और टीचर यूजुअली अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के पैराडाइम से ऑपरेट करता है, और इस वजह से पॉक्सो के प्रति दोनों का एटीट्यूड जो है कहीं ना कहीं डेफिशिएंट रह जाता है, एंड कहीं ना कहीं हम अपनी कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाते हैं या कुछ थोड़ा कमी रह जाती है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरे निजी विचार हैं। दूसरा, जब हम बात करते हैं पॉक्सो एज अ एक्ट, तो आप एक बात समझ लीजिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि घटना घट चुकी है और अब हम उसके पीछे लकीर पीट रहे हैं, या हम उसके प्रभावों को या पनिशमेंट्स को या ब्रिंगिंग द डिफॉल्टर टू जस्टिस, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो प्रोविजंस फॉर लीगल हैंडलिंग की बात कर रहे हैं। तो ये दो डायमेंशन हैं जो पॉक्सो के प्रति हमें जागरूक होने की जरूरत है कि क्या सिर्फ कानूनी पहलू जरूरी है या हमारे को एटीट्यूडनली एज पेरेंट्स एंड एज टीचर्स कुछ अपने आप को बदलने की भी जरूरत है। तो इस डिबेट को मैं आज यहाँ पर कोशिश करूंगा आप सबसे साझा करूं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, देन आई जस्ट रीड इट आउट बिकॉज मैं बाद में सबको ये प्रोवाइड कर दूंगा। बट यहाँ पर पॉक्सो को जब हम समझते हैं तो पॉक्सो के अंदर दो तरह के ऑब्जर्वेशंस मेरे रहे हैं ओवर द इयर्स। वन, वो वातावरण जहां पर पॉक्सो यानी पॉक्सो को हम देखें तो चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, उसमें पहला एलिमेंट आता है इंटेंशनल ऑफेंसेस का। तो और वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहां इंटेंशनल ऑफेंसेस होती हैं पॉक्सो से रिलेटेड, यानी वहां जहां पर बच्चा जो है एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से प्रभावित होता है। तो ऐसा पहला जो सिचुएशन है दैट इज ट्यूशंस। ट्यूशंस में जब बच्चा प्राइवेट या ग्रुप ट्यूशन की तरफ जाता है तो यहाँ पर जो इन्वॉल्व एजेंसी है वो पेरेंट है, ठीक है। तो ट्यूशंस को जब हम देखते हैं तो पेरेंट के पास एक स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, स्क्रीनिंग ऑफ द ट्यूशन एनवायरनमेंट, communication with the child and regularly checking the progress in terms of these sexual offenses. और दूसरा, जब ट्यूटर घर पर आता है तब भी हम घर पे किस तरह का माहौल देते हैं ट्यूटर को और किस तरह का फ्रीडम देते हैं या आइसोलेशन देते हैं, उसको कंट्रोल करना पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ट्यूशन का माहौल खासतौर से पॉक्सो को प्रमोट करता है या सेक्सुअल ऑफेंसेस को प्रमोट करता है यदि ऑड आवर्स का एक एलिमेंट उसमें आ रहा है। हम कई बार एज पेरेंट्स समय को इम्पोर्टेंट मानते हुए ऑड आवर्स में भी ट्यूशंस की इजाजत देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे जो रूटीन चेक मैकेनिज्म्स हैं उसको कमजोर भी करता है। दूसरा, घर, होम एनवायरनमेंट एंड ग्रुप एनवायरनमेंट में कई तरह के मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस आते हैं जहां बच्चे को नहीं पता होता किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। तो वो एक वल्नरेबल पॉइंट है जहां इंटेंशनल ऑफेंस का बच्चा शिकार बन सकता है। दूसरा एलिमेंट होता है केयर टेकिंग। बहुत से पेरेंट्स अपने काम की दुविधा के कारण या दूसरी व्यस्तताओं के कारण उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, पर वो बच्चे को किसी के सुपुर्द करके अपने काम को जाते हैं, आया हो या क्रैच हो या कोई रिश्तेदार है या पड़ोसी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम टोटल बात अपने ट्रस्ट पर डाल देते हैं और वहां पर हम अपने बच्चे को ट्रेनिंग नहीं देते कि उसको किस तरह से चेक्स करने चाहिए या किस तरह से अलार्म रेज करना चाहिए अगर उस बच्चे के साथ कुछ गलत होता है तो। अगेन यहाँ पर इन्वॉल्व एजेंसी जो है वो पेरेंट है। तीसरा लेवल जहां इंटेंशनल ऑफेंसेस हो सकते हैं वो है स्कूल का माहौल, जहां पर बच्चा टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह के स्टाफ से इंटरैक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ स्कूल की जिम्मेवारी बन जाती है कि स्क्रीनिंग, प्रोफाइलिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द स्टाफ एंड स्टाफ इंटरैक्शंस विद द चाइल्ड, उसको मॉनिटर करने का जरूरत रहता है, क्योंकि ये तीसरा एरिया है जहां पर इंटेंशनल ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल नेचर कैन अकर। चौथा ऐसा जो एरिया है दैट इज एडोलेसेंट क्वेरीज। जब बच्चा 10 से 11 वर्ष के बाद एडोलेसेंस की तरफ बढ़ता है तो बच्चे के मन में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं जो कभी वो टीचर से, कभी वो पेरेंट से पूछने का प्रयास करता है या सोचता है। बट मोस्टली मैंने अपने अनुभव में पाया है कि बच्चे को सही जवाब नहीं मिलता, एक अवॉइडेंस का एटीट्यूड मिलता है टीचर की तरफ से भी, पेरेंट की तरफ से भी। यहाँ पर हमें बोथ, क्योंकि स्कूल और पेरेंट दोनों एजेंसीज यहाँ इन्वॉल्व हैं, हमें कहीं ना कहीं एजुकेट और सपोर्ट करने का एक पैराडाइम बदलने की आवश्यकता है।
पांचवा ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर पॉक्सो से जुड़े हुए इंटेंशनल ऑफेंसेस हो सकते हैं, वो है बुलिंग विद इन दी क्लास एंड ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट्स। ये स्कूल से जुड़ा हुआ मसला है बट स्कूल के अंदर नहीं हो रहा, यानी खासतौर से डिस्पर्सल के टाइम में, ट्रैवल बैक होम के टाइम पर, जब बच्चा वैन में जा रहा है या दूसरे माध्यम से घर वापस जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे बच्चों के संपर्क में आता है, दूसरे स्कूल के बच्चों के संपर्क में आता है, वैन ड्राइवर्स के संपर्क में आता है। तो यहाँ पर कई बार उसको इस तरह का माहौल डील करना पड़ता है जहां उसकी तरफ एक अनएक्सपेक्टेड जो है कोई सिचुएशन डेवलप हो सकती है। ऐसे में बच्चे को इस बात का ट्रेनिंग देना कि उसे कैसे रिपोर्ट करना है, पेरेंट और स्कूल के बीच में किस तरह का यहाँ पर एक्सचेंज होना चाहिए इंफॉर्मेशन का, और किस तरह से हम काउंसल करते हुए बच्चे को उस सिचुएशन के लिए तैयार कर सकते हैं, इस चीज की हमें ये तैयारी करने की जरूरत रहती है। तो ये 5 तरह के मैंने एनवायरनमेंट डिस्कस किए जहां पर इंटेंशनल ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल नेचर हो सकती हैं। मैं ऐसी ही एक घटना पे यहाँ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, क्योंकि ये बच्चा हमारे ही स्कूल का था। ये बच्चा मेरे पास आज से कुछ वर्ष पूर्व आया था और इस बच्चे ने मुझे बहुत हिम्मत करके ये बात डिस्क्लोज किया कि उसको उसके ट्यूटर के द्वारा एक्सप्लॉइट किया गया है। एंड ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, बट उसका 11th के बाद 11th क्लास में ये घटना घटी थी और 12th में उसका स्कोर ड्रास्टिकली गिर गया। एंड जब वो बच्चे ने मेरे से आके ये बात शेयर किया तो उसको मैंने रिहैबिलिटेट किया, काउंसिल किया, समझाया। उसके पेरेंट को मैं लूप में नहीं ले पाया क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं शायद ज्यादा डरा हुआ था, बट थैंकफुली आज ये बच्चा वेरी वेल सेटल्ड है और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है और ग्रेटफुल भी और समझता भी है। बट मुझे उस घटना से सीखने को मिला कि कहीं ना कहीं पेरेंट और स्कूल दोनों ने अपना अपना रोल वहां पर नहीं निभाया। तो इसलिए मेरे को लगा कि ये 5 तरह के माहौल मैं आप सबको परिप्रेक्ष्य में जरूर लाऊं। दूसरा, जब इसी तरह की हम बात करते हैं तो सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए दूसरा पहलू है अनइंटेंशनल ऑफेंसेस, जहां बच्चा एक अनइंटेंशनली किसी चीज का शिकार हो जाता है, ना उसके मन में ऐसा कुछ है पर वो किस दबाव में ऐसा होता है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। पहला है इग्नोरेंट एक्सपोजर टू सेक्सुअल पर्सपेक्टिव्स। ये घर पे भी हो सकता है, ये स्कूल में भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। वन इज पीयर इन्फ्लुएंस, एंड उसको हमेशा एक को ट्रैवलर पैराडाइम के साथ गुजरना पड़ता है। उसको अपने क्लास में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने पड़ोस के बच्चों में आपस में कोऑर्डिनेट करके रहना पड़ता है। तो कई बार बच्चा चाहते ना चाहते हुए भी ऐसी चीजों से एक्सपोज हो जाता है जो कि उसके नॉर्मल सर्कल का हिस्सा नहीं है। उदाहरण के तौर पर उसके किसी जानकार बच्चे के पास कुछ ऐसा मटेरियल या कुछ ऐसा डिस्कशन पॉइंट या कुछ ऐसी घटना है जो कि उस बच्चे के लिए बिल्कुल कौतूहल भरी है या नई है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में बच्चा कंफ्यूज होता है और उस चीज की तरफ आकर्षित होता है, और खासतौर से अगर एडोलेसेंस एज है तो शायद इसकी संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर पेरेंट और स्कूल दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह की चीजों के लिए कंटेंट वैलिडेशन, मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन का एक स्ट्रेटेजी तैयार किया जाए। इसी तरह से दूसरा सिचुएशन अनइंटेंशनल सेक्सुअल ऑफेंसेस का जो आता है, वो जब ये बच्चा रिलेशनशिप्स या फ्रेंडशिप्स में पड़ता है। यूजुअली 8-9 साल तक के बच्चे में ये घटना नहीं घटेगी, 10 साल से 15 साल के बच्चों में आपको ये रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप से जुड़ी हुई समस्याएं आएंगी, जहां पर भी बच्चे का पेरेंट से कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है या अपनी टीचर से कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है। वहां बच्चा मित्रों पर, अपने फ्रेंड्स पर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है, और जब ये ऑपोजिट जेंडर के साथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें इन्फैचुएशन का एलिमेंट भी जुड़ जाता है। तो ऐसे में पेरेंट की और टीचर की, दोनों की ये आवश्यकता और रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो इस तरह की चीजों को आइडेंटिफाई कर पाए, आपस में कोऑर्डिनेट करके बच्चे को उस दलदल से निकाल पाए और उस चीज को रिजॉल्व करके बच्चे को नॉर्मलसी की तरफ ला पाए। मैंने कई बार देखा कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं इवन इन अवर स्कूल, तो बहुत सी टीचर्स को हिंट होता है, पता होता है, बट दे रिमेन अवे फ्रॉम इंटरफियरिंग इन दैट मैटर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है
इस उम्र में, खासतौर से एडोलेसेंस की उम्र में बार बार बात कर रहा हूँ, जो बच्चे के ऊपर एक्ट करने वाली रियल फोर्सेस हैं वो है उसकी नीड फॉर अप्रूवल एंड एक्सेप्टेंस, एंड दूसरा उसके ऊपर जो प्रेशर होता है वो होता है प्रेशर ऑफ कंफॉर्मिटी टू द क्लास एनवायरनमेंट, टू द पीयर ग्रुप। तो ये जो अप्रूवल और एक्सेप्टेंस की उसकी नीड है कि उसको भी स्वीकार किया जाए, उसको भी सम्मान मिले, उसको भी समान रूप से एट दी सेम लेवल ट्रीट किया जाए उसके पीयर ग्रुप के द्वारा, ये उस बच्चे की एक स्वाभाविक जरूरत है। इसी तरह से जो बच्चे कई बार थोड़े से इंफीरियोरिटी की तरफ होते हैं या थोड़े से सुपीरियोरिटी की तरफ होते हैं अपने क्लास के एवरेज लेवल से, उन दोनों के ऊपर ही कंफॉर्म करने का, यानी ग्रुप के नॉर्मल व्यवहार के प्रति अपने आप को वैसा बदलने का, वैसा दिखाने का एक इनडायरेक्ट प्रेशर जुड़ता चला जाता है, जिस वजह से बच्चा कहीं ना कहीं जाकर सेक्सुअल ऑफेंसेस का शिकार हो जाता है। तो ये दो घटनाएं ऐसी थी, ये दो वातावरण ऐसे हैं, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, दोनों ही तरफ से, जहां बच्चे के ऊपर ये प्रेशर रहता है। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड जी। तो ऐसे में जब हम प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस की तरफ आते हैं, तो हमारे पास दो टूल बचते हैं, पेरेंट के पास भी, टीचर के पास भी। पहला टूल है कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड, कम्युनिकेशन बिटवीन द पेरेंट एंड द टीचर। अब इस कम्युनिकेशन को समझने की जरूरत है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कम्युनिकेशन? देखिए, यहाँ पर कम्युनिकेशन का अर्थ ये नहीं है कि हम बच्चे की या उसके माहौल की गलतियां ढूंढने में निकल रहे हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन के सिर्फ दो पैराडाइम चाहिए। पहला, हर वक्त बच्चे को और पेरेंट को और टीचर को, तीनों को, जो भी एजेंसीज जुड़ी हैं, उनको दो पैराडाइम जीने हैं। वन, आई एम अवेयर, दूसरा, आई एम रेडी टू शेयर। यानी बहुत पॉजिटिवली सिर्फ दो तरह का माहौल क्रिएट करना है कि मैं इस सिचुएशन को देख रहा हूं, ये सिचुएशन मेरी जानकारी में है, और दूसरा, अगर कोई भी डेवलपमेंट होती है तो मैं शेयर करने को तैयार हूं। जब बच्चा टीचर से आके बात करता है तो ये रीएश्योरेंस देना कि हाँ बेटा, आई एम अवेयर, एंड दूसरा, बेटा यू कैन शेयर विद मी, ये माहौल देना टीचर का फर्ज है। इसी तरह से पेरेंट के प्रति जब बच्चा आके बोलता है तो पेरेंट को भी उस अवेयरनेस को और उस शेयरिंग को प्रमोट करना है। और इसी तरह से जब पेरेंट और टीचर इंटरैक्ट करते हैं तो उन दोनों को भी आपस में ये अवेयरनेस और शेयरिंग, इसको प्रमोट करने का जरूरत है। जब भी आप ये देखेंगे कि ये कम्युनिकेशन, ये शेयरिंग और अवेयरनेस कंप्लीट हो रही है, तो आप पाएंगे कि बच्चा नेचुरली प्रोटेक्टेड है, उसके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस नहीं होगा कभी भी। सिर्फ ये दो पॉजिटिव पॉइंट करने से आप 95-96% तक इंश्योर कर सकते हैं कि बच्चे के साथ कोई दुर्घटना ना हो। सेकंड टूल इसमें आता है, नेक्स्ट पॉइंट प्लीज, सेंसिटिव हैंडलिंग। जब भी हमारे पास हमारा बच्चा आके कुछ कह रहा है, एज अ स्टूडेंट आकर कह रहा है, एज अ चाइल्ड मेरे को पेरेंट के तौर पर आकर कह रहा है, तो मुझे दो चीजें, अगेन दो पॉजिटिव चीजें करनी है। पहला, नो शेमिंग, बच्चे को शर्म का एहसास नहीं कराना। ये नहीं कहना तूने ही कुछ गलती की होगी, ये नहीं कहना तूने ऐसा क्यों किया, तूने वैसा क्यों किया, उसकी बात को स्वीकार करना है। एंड दूसरा, नो कॉन्फ्लिक्ट, बच्चे के उस कम्युनिकेशन के ग्रेडियंट को हमने कभी भी खत्म नहीं करना, बच्चे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं उतरना, एज पेरेंट एज वेल एज टीचर। तो अगर हम कम्युनिकेशन के टाइम पे अवेयरनेस और शेयरिंग के पैराडाइम को जी रहे हैं और सेंसिटिव हैंडलिंग के टाइम पे नो शेमिंग एंड नो कॉन्फ्लिक्ट के पैराडाइम को जी रहे हैं, तो हम एक डायरेक्ट मैसेज बच्चे को दे रहे हैं दैट वी आर कीपिंग द थिंग्स ओपन एंडेड, यानी बच्चा कभी भी आके कुछ भी आपसे बांट सकता है। अगर हम ये कीपिंग थिंग्स ओपन एंडेड वाली पॉलिसी लेकर चलते हैं तो हम काफी हद तक एक मेजर पार्ट ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम इवन अकरिंग। नाउ गिव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब समझते हैं कि सेक्सुअल ऑफेंसेस होती कैसे हैं, बिल्डअप कैसे होती हैं। मैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट आपसे शेयर कर रहा हूं जो मैंने अपने अनुभव के आधार पर तैयार किया है, और ये प्योरली मेरे अनुभव पर आधारित है। तो आई वुड एक्सपेक्ट यू ऑल टू प्लीज गिव इट ड्यू डिलीजेंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब हम सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करते हैं तो ग्लोबल एवरेज सेज कि लगभग
19% लड़कियां और 8% लड़के, 19% गर्ल्स एंड 8% बॉयज ग्लोबली face sexual abuse at least once in their life. बट इसका दूसरा डरावना पहलू जो है वो है कि जब आप सेक्सुअल एब्यूज के केसेस को स्टडी करते हैं तो आप पाते हैं 30% सेक्सुअल एब्यूज के केसेस अपने घर में ही हो रहे हैं। यानी जो बच्चे का अपना रिलेटिव है, फादर, ब्रदर, अंकल, आंटी, ये लोग डायरेक्टली इस तरह की एब्यूज से इन्वॉल्व हैं, इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके कारण ये हो रहा है। और 60% केसेस में जो पर्सन है, एग्रेसर है, जो सेक्सुअल अब्यूज कर रहा है, वो बच्चे के जानकार सर्कल से होता है। यानी अगर 30% तो परिवार का मैंने बताया, उसके अलावा 60% केसेस बच्चे के जानकार सर्कल से होते हैं। उसका वैन ड्राइवर, उसकी आया, उसका दोस्त, उसका पड़ोसी, पड़ोसी का ट्यूटर, फ्रेंड के ब्रदर, फ्रेंड की सिस्टर, इस तरह के लोग जो उसके नोन सर्कल में हैं। तो यानी टोटल सेक्स अब्यूज केसेस को अगर हम देखें तो 90% उसके परिवार या उसके जानकार सर्कल से ये घटनाएं आ रही हैं। ओनली अबाउट 9.5% cases are where sexual abuse is a planned organized criminal activity. It is just like कि चोरी हो रही है तो जानकार आदमी ही चोरी कर रहा है। डकैती यानी जो सिर्फ डकैती के पर्पज से आके डकैती डालता है, वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत कम है, उसका परसेंटेज काफी कम है, और उसको हम साइकोलॉजी में पीडियोफिलिक टेंडेंसी बोलते हैं। तो पीडियोफिलिया जिसको बोलते हैं, इट इज नॉट वेरी कॉमन, इट इज अ रेयर अकरेंस। तो यूजुअली आप देखेंगे ये पूरा जो ग्राफ है, अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें हम लेफ्ट साइड पे आप देखें तो ग्रोइंग चाइल्ड, हर बढ़ता हुआ बच्चा सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ आता है तो उसकी पर्सनैलिटी में कुछ क्यूरोसिटी नीड्स जनरेट होती हैं, जो कि एक सामान्य स्वाभाविक प्रक्रिया है। एंड इट इज लाइक क्वेश्चंस अबाउट मैस्टरबेशन, नाइटफॉल, पीरियड्स, बॉडी हेयर या ऑर्गन साइज, इस तरह की क्वेरी बच्चों में लगभग 9 से 10 साल की वर्ष में बच्चा ये नोटिस करना शुरू कर देता है। और आज के दिन में मैं देखता हूँ 10 से 11 साल के बच्चे ये आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। और ऐसे में बच्चे का नोन सर्कल, खासतौर से एडोलेसेंस एज ग्रुप में, जब वो 10 और 11 के ऊपर जा रहा है, पुराने टाइम में हम एडोलेसेंस को 13 से 15 वर्ष मानते थे, बट आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है ये उम्र 10 से 12 वर्ष हो गई है। तो ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा अनुभव कहता है। तो कहीं ना कहीं बच्चा जब इस तरह की क्यूरोसिटी लेकर जाता है तो उसके मन में एक इनोसेंस बैरियर और एक इंफॉर्मेशन बैरियर हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो बच्चा, पहला प्रयास तो उसका रहता है अपने सर्कल से उसका जवाब ढूंढने का, और यही बच्चा पहली इवेंट 1 ऑफ एंट्रैपमेंट में जाता है। जब भी उसके अपने नोन सर्कल में इस तरह का माहौल मिल जाए कि जहां उसको अपने जवाब का आंसर मिलने लगे, तो बच्चा एक तरह से चूहा चूहेदानी में फंस गया, एंट्रैप हो गया वहां। ठीक है, यही चीज अगर इस अवस्था में बच्चे को सही कम्युनिकेशन या काउंसलिंग मिल जाए, यानी जब भी बच्चा ऐसा एंट्रैप्ड फील करे और उसको पता है मेरे स्कूल में या मेरे घर पर मेरा ये अभिभावक या ये टीचर ऐसा, इससे जाके मैं बात कर सकता हूँ कि मैं पूछना ये चाह रहा था और मेरे साथ ऐसी दुर्घटना घटी, तो अगर उसको वहां पर सही कम्युनिकेशन या काउंसलिंग मिल जाए तो जो सेकंड लेवल है, इवेंट 2, दैट इज एक्चुअल एक्सप्लॉयटेशन, उसको रोका जा सकता है। बट ये जो पार्टिसिपेंट 1 की जो समस्या आती है, वो आती है फियर, शेम एंड लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम। ये तीनों के कारण बच्चा सही तरीके से कम्युनिकेशन और काउंसलिंग को सीख नहीं कर पाता। ये एक घटना है जिस वजह से एंट्रैपमेंट के बाद एक्सप्लॉयटेशन फॉलो करता है। दूसरी चीज, अगर हम दूसरा पहलू देखें, बहुत सारे जो अडल्ट लोग हैं, जो समाज का बड़ा हिस्सा है, दे आर हैविंग देयर ओन परवर्जन्स एंड distorted view about sex and sex gratification, and there are a variety of gratification pathologies which exist in the society. अलग अलग तरीके से लोग अपनी
सेक्स की इच्छा को पूरी करने का कोशिश करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, और उसके बहुत से परवर्टेड रूप समाज में मौजूद है। ऐसे में यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो बच्चे के सर्कल में है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है बट सर्कल में है, और वो बच्चे के उस इनोसेंस बैरियर या इंफॉर्मेशन बैरियर को ब्रेक कर पाता है, तो वहां पर ये स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाती है, और यहाँ पर एंट्रैपमेंट और एक्सप्लॉयटेशन दोनों ही इवेंट एक के बाद एक हो सकती हैं। ऐसे में द चांसेस ऑफ रिपीट एंड द चांसेस ऑफ डैमेज आर मच मोर। और ऐसे में जब पार्टिसिपेंट 2 इस तरह का है जहां पर उसके पीछे कोई ग्रेटिफिकेशन पैथोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है, उसकी एक अनसेटिस्फाइड सेक्स डिमांड है जो कि एक भोले भाले बच्चे के माध्यम से उसे पूरी होती हुई दिख रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक क्रिमिनल एस्पेक्ट की तरफ चला जाता है, जहां पर हमारे को वाकई एक एक्ट की जरूरत पड़ती है जिसको हम पॉक्सो एक्ट कहते हैं, विच विल एक्ट एज अ लीगल पनिशमेंट और अ डेटरेंट टू दी पर्सन हु इज ऑफेंडिंग बाय चॉइस। तो ये दो तरह के पहलू हैं जहां कहीं ना कहीं हमें एज पेरेंट एंड टीचर समझने की जरूरत है कि कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग का सही स्टेज पर कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कि अगर बच्चे के उस डर को, उस शेमिंग को या उस लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम को हम जो एंट्रैपमेंट के लेवल पर टैकल कर पाए, तो हम कहीं ना कहीं पॉक्सो को ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं विदाउट इवन यूजिंग द एक्ट। बट देन लेट अस फेस द रियलिटी, घटनाएं घटती हैं और चीजें होती भी हैं। तो ये तो है जो डिसऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स की तरफ है। दूसरा लेवल आता है जब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की वजह से होता है। तो जब ये साइकोलॉजिकल पैथोलॉजी के कारण सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के कारण सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है, इन दोनों के लिए फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं बचता कि हम कानून की शरण में जाएं, एंड दैट इज व्हाट डिफाइंस द पॉक्सो एक्ट। दैट इज द प्लेस वेयर वी नीड दिस एक्ट। अदरवाइज बहुत कुछ ऐसा है जो हम पेरेंट और टीचर के लेवल पर ही सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब हम समझेंगे कि पॉक्सो एक्ट की जब ये नीड एस्टैब्लिश हो रही है, तो अब हम बात कर रहे हैं उन चीजों की जहां पर पॉक्सो की एक्चुअली जरूरत है। तो पॉक्सो एक्ट 2012 14 नवंबर 2012 को ये शुरू किया गया, और इसके 3 प्रमुख एम्स थे। 3 प्रमुख कारणों से या एम्स को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को बनाया गया। पहला, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी। ये 3 प्रमुख शब्दों को यहाँ डिफाइन किया गया, सेक्सुअल असॉल्ट, हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी। सेकंड, the aim of this act was to safeguard the child interests and privacy। यहाँ पर बच्चे की प्राइवेसी और उसके जरूरियात को इंपॉर्टेंस दी गई और उनको सुरक्षा देना एक मूलभूत अधिकार बच्चे का माना गया। एंड तीसरा, एंश्योर चाइल्ड डेवलपमेंट। ये माना गया कि सभी बच्चों को समान रूप से विकसित होने का अधिकार है, और इन 3 चीजों को प्रोवाइड करने के लिए इस एक्ट की स्थापना हुई। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो पॉक्सो में प्रोविजन है कि स्पेशल कोर्ट्स का, यानी ऑल केसेस रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑफेंसेस विद रिलेशन टू चिल्ड्रन विल बी डेल्ट इन स्पेशल कोर्ट्स। दूसरा, यहाँ पर चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म्स ऑफ रिपोर्टिंग रहेंगे, यानी किसी भी तरह का ऐसा मतलब जानकारी एकत्रित करना, घटना की जानकारी एकत्रित करना, बच्चे का इंटरव्यू लेना या डिटेल्स को और रिकॉर्ड करना, ये सब जो होगा चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म से होगा। यानी जो ऑफिसर्स हैं उनको भी ये हिदायत होगी कि बच्चे की सेंसिटिविटी को प्रभावित ना होते देते हुए इस चीज को करना है, तो उस चीज का ध्यान रखा गया। Then child protection was made a point as a responsibility of police and other agencies। यानी सामाजिक रूप से पुलिस और उससे जुड़ी हुई दूसरी एजेंसीज का ये एक प्राइमरी जिम्मेवारी बना दिया गया इस एक्ट के द्वारा। अगला पॉइंट जो था, चाइल्ड केयर एंड रिहैबिलिटेशन को एज अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई किया गया। यानी ये सरकार की प्राइमरी जिम्मेवारी है कि वो इस तरह के बच्चे जो इस तरह की घटनाओं का शिकार हो रहे हैं उनकी केयर और रिहैबिलिटेशन का प्रबंध करे। फिर प्रावधान किया गया कि ऐसे बच्चों के लिए एडिक्वेट कंपेंसेशन, फाइनेंशियल एज वेल एज मॉरल कंपेंसेशन का इसमें प्रावधान किया गया। एंड लास्टली, वेल डिफाइंड पनिशमेंट्स।
बहुत सी ऐसी चीजें जहां पर कानूनी रूप से क्लैरिटी की जरूरत थी, कानूनी रूप से ये डिफाइन करने की जरूरत थी कि कौन सा अपराध की श्रेणी में आता है, उसके आधार पर श्रेणियां डिफाइन की गई और उनकी पनिशमेंट्स डिफाइन की गई। इस एक्ट के बाद बच्चों के हर पहलू को विचारणीय बनाकर उसके ऊपर प्रॉपर एक फ्रेमवर्क ऑफ जस्टिस तैयार किया गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान पॉक्सो एक्ट का जो है वो है मैंडेटरी रिपोर्टिंग। इस चीज को बहुत ध्यान से हम सब लोग समझेंगे। नाउ मैंडेटरी रिपोर्टिंग का अर्थ क्या है? इट इज द लीगल ड्यूटी ऑफ अ पर्सन हु हैज नॉलेज ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज टू रिपोर्ट द मैटर। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको किसी भी प्रकार के चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की जानकारी है, तो ये कानून कहता है कि ये आपकी प्राथमिक ड्यूटी है कि आप इसे रिपोर्ट करें। एंड फेलिंग टू डू सो attracts a punishment which may range from imprisonment to fine or both। यानी आप ये नहीं कह सकते, अगर किसी घटना में ये साबित हो जाता है कि आप वहां मौजूद थे या आपको उस चीज की जानकारी थी, तो आपको भी उस घटना का इनडायरेक्ट कारक मान के आपको सजा दी जा सकती है। ये इस एक्ट में पहली बार लाया गया। नाउ एज अ टीचर और एज अ इंडिविजुअल यहाँ हमें क्या समझने की जरूरत है? पहला कि क्या हम अपनी आंखें मीच सकते हैं? तो एक्ट की इस डेफिनेशन के हिसाब से नहीं। दूसरा, हम क्या करें और किसको रिपोर्ट करें? पहला, तो हम अपनी अथॉरिटी को, अगर आप एक टीचर के तौर पर हैं या इंडिविजुअल के तौर पर हैं, आप स्कूल में जो आपकी अथॉरिटी है यानी प्रिंसिपल है, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, आप अपनी मैनेजमेंट कमेटी को रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, जब स्कूल के पास ऐसी घटना आती है तो स्कूल को दोनों एजेंसी, पहला पेरेंट और दूसरा लीगल बॉडीज जो उससे कंसर्न्ड है, उनको इन्फॉर्म करना, ये पहली प्राथमिक ड्यूटी बन जाती है। नाउ दिस इज लाइक सेटिंग अ बॉल इन मोशन। तो जब आप एक तरीके से कैस्केड शुरू करते हैं, तो घटना टीचर की जानकारी में आई, टीचर ने प्रिंसिपल को या स्कूल मैनेजमेंट को बताया, और स्कूल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल के पास जानकारी आई तो उसको पेरेंट और लीगल बॉडी यानी जो लोकल पुलिस है उसको बताना बहुत जरूरी है। लोकल पुलिस को आगे मैं और आगे डिफाइन करके बताऊंगा अभी। तो उसको वहां पर इन्फॉर्म करना, ये एक मैंडेटरी प्रोसीजर बन जाता है द मोमेंट द कंप्लेंट कम्स ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, अब समस्या क्या आती है? अक्सर हम ये बातें जबानी कहते हैं, वर्बली रिपोर्ट करते हैं, वी डू नॉट रिपोर्ट देम ऑफिशियली। तो मैं यहाँ पर सुझाव ये देना चाहूंगा, अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज आपकी जानकारी में आती है तो आप इसे रिपोर्ट बाय ईमेल करें, या अगर आप लिखित में कंप्लेंट दे रहे हैं तो आप उसका एक्नॉलेजमेंट लें। अगर आप ये दो चीजें करते हैं, ईमेल से रिपोर्ट करते हैं या रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट लेते हैं, तो जो भी व्यक्ति रिसीव कर रहा है वो बाध्य हो जाता है कि उसे आपकी शिकायत पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और दूसरा, उससे आपकी बाध्यता और आपकी जो ये चीज है कि भाई आपको पनिश किया जा सकता है, वो खत्म हो जाता है, बिकॉज आपने जो रिपोर्ट किया उसका एविडेंस आपके पास है। तो ईमेल का ट्रेल या लिखित में अगर आपने एक्नॉलेजमेंट लिया है, तो ये सबसे बड़ा एक पॉइंट बनता है कि आपकी शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। मैं अभी आपसे एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं कि मेरे साथ, हालांकि इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस मैटर, बट मेरे साथ अभी एक बैंक में वाकया हुआ जहां पर मेरे को प्रताड़ित किया गया एक पर्टिकुलर चीज के लिए। तो 10-12 दिन तो मैंने बर्दाश्त किया, 11वें दिन मैंने जाके रीजनल ऑफिस में उनके कंप्लेंट लिख दी, एंड जो रीजन का हेड था मैंने उसको डायरेक्ट कंप्लेंट दी और उससे एक्नॉलेजमेंट ले ली। और इसका फायदा क्या हुआ? बिना मेरे कुछ कहे ना सिर्फ मेरी समस्या सॉल्व हुई, बट उस चेन में जितने भी डिसीजन मेकर्स थे उन सब के ऊपर एक्शन हुआ अगले 15 दिन के लिए। ये सिर्फ इस कारण से हो पाया कि एक सीनियर व्यक्ति के पास रिपोर्ट का एक्नॉलेजमेंट था जिसको वो डिनाई नहीं कर सकता। ये आप समझ लें कि सभी सीनियर ऑफिसर्स, सभी सीनियर अधिकारी और ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के परव्यू में आते हैं। तो यदि आप अपनी कंप्लेंट की, अपनी शिकायत की एक्नॉलेजमेंट ले रहे हैं या ईमेल के माध्यम से भेज रहे हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी से बचकर निकल जाए।
सो मैंडेटरी रिपोर्टिंग को इसलिए समझना हम सब के लिए अनिवार्य है। तो अब अगर इस प्रावधान को समझ लिया और इसके बाद कभी हम चुप रहते हैं तो मान लीजिए कि वो चुप रहने का डिसीजन आपका अपना है और उसके जुड़े हुए जो भी फॉल आउट्स होंगे उसका प्रभाव आप पर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दूसरा आता है प्रोसीजर, एक्चुअली क्या करना चाहिए। पहली चीज ये समझे, एनीवन कैन रिपोर्ट विदाउट फियर ऑफ बीइंग विक्टिमाइज्ड। एक तो ये डरने की जरूरत नहीं है कि मैं रिपोर्ट करता हूं तो मुझे विक्टिमाइज किया जाएगा, नहीं, एनीबडी कैन बी अ विसल ब्लोअर। दूसरा, यहाँ पर जो अगले कुछ पॉइंट्स है ये डेडिकेट करते हैं, मतलब ये मैं बताता हूँ, जैसे हर पुलिस स्टेशन में एक SJPU होता है जिसको बोलते हैं स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट यानी हर बड़े पुलिस स्टेशन में ये प्रावधान है कि एक छोटी कमेटी है जो बच्चे और बच्चों से, अंडर एज बच्चों से जुड़े हुए क्राइम्स पर काम करती है। तो जब भी आप इस तरह की जानकारी अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अगर कानून के संबंधित किसी दिशा में देना चाहते हैं तो यू शुड एड्रेस द SJPU ऑफ दैट एरिया, ऑफ दैट पुलिस स्टेशन। और SJPU क्या करती है, ये उसकी बाध्य जिम्मेवारी है कि उसको बच्चे को केयर और प्रोटेक्शन देना है, उसको बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है, यानी जो कि अगेन इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स होना चाहिए और जेंडर सेंसिटिव वे में हैंडल होना चाहिए। तीसरा, ये SJPU जो है ये इंश्योर करता है कि जो भी प्रोसीडिंग होगी, डिस्कशंस होंगे, वो इन कैमरा रहें, रिकॉर्डिंग्स रहें उसकी। और जब भी ये पूरा प्रोसेस होता है तो SJPU को अपने इस तरह की घटनाओं को विद इन 24 आवर्स हर एरिया की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को उसको वो रिपोर्ट करना होता है। एंड अगर बच्चे को जरूरत है तो उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल या चाइल्ड केयर, चाइल्ड शेल्टर होम में उसको बच्चे को रिहेबिलिटेट करना भी इस यूनिट की जिम्मेवारी है। यानी ऑल दीज थिंग्स विल बी टेकन केयर बाय द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट वंस यू हैव ब्रॉट द थिंग टू द नोटिस ऑफ द यूनिट। इसके अलावा कुछ और एजेंसीज भी हैं जिसके ऊपर आप इस चीज को एक्शन ले सकते हैं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए। पहला, जैसे मैंने बताया, आप खुद भी डायरेक्टली चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को एड्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा हर राज्य में SCPCR यानी स्टेट काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जिसको दिल्ली में अगर हम कहें तो DCPCR बोलते हैं, S हटा के D लग जाता है, दिल्ली। हर राज्य का अपना है, इसलिए मैंने SCPCR बोला। दिल्ली के केस में दिस विल बी कॉल्ड DCPCR। इसी तरह से एक राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा आयोग है जिसको NCPCR बोलते हैं, राइट। तो इन सब के ऑफिसेज हैं, आप गूगल कर सकते हैं, इनका पता ढूंढ सकते हैं, उनको आप चिट्ठी, पत्री, ईमेल, दोनों चीजें आप कर सकते हैं। और इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एजेंसी है दैट इज द चाइल्ड हेल्पलाइन। चाइल्ड हेल्पलाइन पे जैसे आप 100 नंबर पे कॉल करते हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन पे जब भी इस तरह की किसी चीज को आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसके ऊपर एक्शन अनिवार्य होता है। और चाइल्ड हेल्पलाइन को याद रखने का सबसे सरल तरीका है जो मैंने लिखा हुआ है, 10-9-8, यानी 8-9-10 तो हम गिनते ही हैं, इसको उल्टा लिख दें 10-9-8। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। दिस इज चाइल्ड हेल्पलाइन। आप एनोनिमस कॉल करके भी किसी बच्चे के बारे में यहाँ शिकायत दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नो, इसके अलावा पॉक्सो एक्ट के अंदर कुछ जो बड़े बदलाव किए गए, दे वर रिलेटेड टू द बेसिक डेफिनेशंस which by which the law understands the gravity of the incident. सबसे पहला डेफिनेशन was of the child, बच्चा किसको माना जाएगा? तो any person who has not completed 18 years of age will be treated as a child, उसको बच्चा माना जाएगा। यानी जिस भी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम है और उसके अगेंस्ट कोई भी व्यक्ति इस तरह का अपराध कर रहा है तो वो इस एक्ट में कवर होगा। ये चीज का डेफिनेशन, बच्चे का डेफिनेशन JJ एक्ट में भी इसी तरह से लिया गया है, द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बोलते हैं। और इसी तरह से UNCRC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, उसके लिए भी एक 30 साल से ये प्रचलित इंटरनेशनल नॉर्म है कि 18 वर्ष से कम वाले सभी लोगों को बच्चा ट्रीट किया जाता है। दूसरा, इसी चीज को अगर हम देखें तो ये एक्ट में यूनाइटेड नेशंस के ही जो कन्वेंशंस हैं जो कि चाइल्ड राइट्स के बारे में, उसको ध्यान में रखते हुए
बच्चे के अधिकार और बच्चे की जरूरतों को अलग अलग डिफाइन किया गया है। जैसे यूएनसीईआरसी का जो आर्टिकल 1 से 40 है, ये बच्चे की राइट्स का डेफिनेशन देता है, और जो आर्टिकल 41 टू 54 है, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस चाइल्ड राइट्स उसको फिक्स करता है। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी जो गाइडलाइंस हैं एज पर चाइल्ड राइट डेफिनेशन एंड एज ऑफ की स्टेट का, सरकार का क्या जिम्मेवारी है बच्चों के अधिकार के प्रति, उसके आधार पर पॉक्सो एक्ट को तैयार किया गया है। ठीक है, फर्दर अगर हम समझे, ब्रीफ में मैं जस्ट टच कर रहा हूं, चाइल्ड राइट्स को, बच्चों के अधिकारों को 4 प्रमुख कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला, सर्वाइवल राइट्स। सर्वाइवल राइट्स में बच्चे की सेहत और न्यूट्रिशन, यानी उसकी बेसिक बीमारियों से बचाव, उसका जैसे आप देखते हैं पोलियो का टीकाकरण हो रहा है या डिप्थीरिया के लिए टीकाकरण हो रहा है, तो ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स है सर्वाइवल के अंदर आते हैं सारे, ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सर्वाइवल in terms of health and nutrition। दूसरा, डेवलपमेंटल, दैट मीन्स बच्चे का सही रूप से विकास, एजुकेशन, यानी जिसको अब राइट टू एजुकेशन एक्ट में किया जा रहा है कि अप टू दिस एज या अप टू दिस क्लास एजुकेशन इज फ्री, सरकार को प्रोवाइड ही करनी है, दैट वे। तीसरा बच्चे का अधिकार क्षेत्र आता है प्रोटेक्शन, कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन। तो यानी बच्चों की सुरक्षा से जुड़े हुए सभी तरह के चीजों को सरकार ने देखना है और उस पर कानून बनाना। और चौथा, पार्टिसिपेशन, ये सुनिश्चित करना कि बच्चे के पास अवसर की कमी ना हो, देयर इज नो डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो द चाइल्ड शुड गेट अ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ और टू टेक पार्ट इन द ओवरऑल प्रोग्रेस। तो ये चारों चीजों की सब कैटेगरीज बनाई गई जो कि इस पॉक्सो एक्ट का आधार है। राइट, नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि चाइल्ड एब्यूज को डिफाइन किया गया और चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज को डिफाइन किया गया। चाइल्ड एब्यूज का अर्थ यहाँ पर आता है कि बच्चे का इमोशनल, सेक्सुअल, फिजिकल या नेग्लेक्टफुल एब्यूज, चारों तरह का एब्यूज जो कि रिजल्ट करता है इन एक्चुअल और पोटेंशियल हार्म टू द चाइल्ड हेल्थ, सर्वाइवल, डेवलपमेंट और डिग्निटी। यानी किसी भी बच्चे का भावनात्मक रूप से शोषण किया जाए, सेक्सुअल रूप से शोषण किया जाए, फिजिकल शारीरिक रूप से शोषण किया जाए, या नेग्लेक्टफुल, उसको ध्यान ना देते हुए उसका शोषण किया जाए, जिसके कारण बच्चे को एक्चुअल या पोटेंशियल हार्म हो सकता है, यानी बच्चे को नुकसान हुआ है या हो सकता है। और किस प्रकार का नुकसान? उसकी सेहत का, सर्वाइवल उसकी जिंदगी का, डेवलपमेंट उसके विकास का, या डिग्निटी उसके सम्मान का। तो चारों चीजों के ऊपर अगर पोटेंशियल हार्म हुआ है या हो सकता है, तो वो सभी चीजों को सेक्सुअल चाइल्ड एब्यूज माना जाएगा। ठीक है, इमोशनल एब्यूज में जैसे आता है डिस्क्रिमिनेशन अमंगस्ट चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर और रेस, सामाजिक रूप से, यानी बच्चे को एडमिशन देते हुए, क्लास में बैठाते हुए, पिकनिक के लिए पार्टिसिपेट कराते हुए, या किसी तरह की सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हुए किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो बच्चों के बीच में असमान रूप में असमानता क्रिएट की जाती है, तो दैट इज क्रिएटिंग अ इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चाइल्ड। दूसरा, सेक्सुअल एब्यूज। सेक्सुअल एब्यूज में हरासमेंट, असॉल्ट या पेनिट्रेटिव असॉल्ट या चाइल्ड मैरिज, ये सारी चीजें कवर्ड होती हैं, जो कि जिसके ऊपर हम विशेष तौर पे अगली स्लाइड पे ध्यान देंगे। ठीक है, दैट इज द मेन एसेंस ऑफ पॉक्सो। एंड देन फिजिकल एब्यूज। फिजिकल एब्यूज मतलब चाइल्ड लेबर, कम उम्र के बच्चों से शारीरिक श्रम कराना। एंड निग्लेक्ट, निग्लेक्ट जो कि हमारे घरों में बहुत प्रेवलेंट है, जो कि जेंडर बायस जिसे हम अक्सर कहते हैं, प्रेजुडिस एंड डेप्रीवेशन ऑफ रिसोर्सेज टू दी चिल्ड्रन बेस्ड अपॉन जेंडर और बेस्ड अपॉन देयर स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ हेल्थ और स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, उन सब के आधार पर बच्चों के अंदर भेदभाव करना, जो कि कहीं ना कहीं रूप से एक सामाजिक बुराई भी है। तो इन सभी के कारण बच्चों की डेवलपमेंट, हेल्थ, सर्वाइवल और डिग्निटी, सम्मान की भावना, चारों पर असर आता है, जिसको कि चाइल्ड एब्यूज के तौर पर डिफाइन किया गया है। नाउ कमिंग टू चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज।
चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज का डेफिनेशन दिया गया जो कि पॉक्सो की बेसिक मूल आत्मा है। एनी एक्ट ऑफ यूजिंग अ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, यानी कोई भी ऐसा चीज जो कि बच्चे को इन्वॉल्व करके सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन यानी किसी को यौन सुख देने के लिए अगर किया जा रहा है, बाय और फॉर यानी किसी के लिए या किसी के द्वारा जो कि पावरफुल पर्सन है, यानी बच्चे से ज्यादा ताकतवर पर्सन है। वेयर एक्ट्स ऑफ एब्यूज यानी जो वो काम कर रहा है, मे और मे नॉट इंक्लूड टच, यानी जरूरी नहीं है वो काम करते हुए स्पर्श करा जा रहा हो बच्चे को। अगर बच्चे को बिना स्पर्श किए भी इस तरह का कोई ग्रेटिफिकेशन एब्यूज किया जा रहा है, तो ऑल दैट इज कवर्ड अंडर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज एज पर द डेफिनेशन लेड बाय पॉक्सो एक्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Further, the act defines two types of चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज रेफर्ड एज CSA here। यहाँ पर मैंने CSA जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, दैट मीन्स चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। पहला आता है नॉन कॉन्टेक्ट CSA, ऐसा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जिसमें कि संपर्क या स्पर्श नहीं हो रहा, नॉन कॉन्टेक्ट है। तो इसमें पहला चीज डिफाइन किया गया है सेक्सुअल हैरेसमेंट, जिसको कि सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है। इसके सेक्सुअल हैरेसमेंट मीन्स अटरिंग वर्ड्स, बात कहना, मेकिंग साउंड्स और जेस्चर्स, यानी ऐसी आवाज निकालना या ऐसे इशारे करना, और डिस्प्ले बॉडी पार्ट्स विद सेक्सुअल इंटेंट विद एन इंटेंट दैट द चाइल्ड शुड सी और हियर, यानी कोई भी ऐसे शब्द कहना, आवाज निकालना, इशारे करना या शारीरिक हिस्से शो करना जिससे कि बच्चा उसे देखे या सुने, इन सब चीजों को सेक्सुअल हैरेसमेंट में कंसिडर किया गया है। दूसरा, अदर फॉर्म्स ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, जिसको कि सेक्शन 13 कहा गया है। इसके आधार पर शोइंग पोर्नोग्राफिक कंटेंट, किसी बच्चे को पोर्नोग्राफिक यानी शारीरिक शोषण से जुड़ी हुई चीजें या इस तरह की अश्लील चित्र दिखाना, चित्र या मूवीज दिखाना। वॉचिंग और मेकिंग अ चाइल्ड वॉच अडल्ट कंटेंट, यानी बच्चे के सामने अडल्ट कंटेंट वॉच करना या बच्चे को अडल्ट कंटेंट दिखाना, ये इसमें कवर होता है। टॉकिंग अबाउट सेक्स और सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्स और सेक्सुअल एक्टिविटी से जुड़ी हुई बातें बच्चे की प्रेजेंस में करना। शोइंग और सीइंग द बॉडी पार्ट्स ऑफ द चाइल्ड, यानी एक बच्चे के शारीरिक अंगों को दूसरे बच्चों को दिखाना या उसकी जानकारी के बिना खुद देखना, ये इस फॉर्म में आता है। ऑनलाइन एब्यूज, बच्चे को किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसा कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हुए बच्चे को एब्यूज करना, या ट्रांसमिटिंग और प्रोपगेटिंग सच मटेरियल। फर्ज कीजिए किसी का आपको वीडियो प्राप्त हुआ या मैसेज प्राप्त हुआ और आपने 4 और लोगों को आगे भेज दिया, ये भी इस कानून के तहत कवर होता है। अगर ये पाया जाता है कि आपके मोबाइल से 10 लोगों को प्रोपेगेट किया गया तो आपको भी इसमें दोषी माना जा सकता है, एक्सेप्ट व्हेन इट इज डन फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग द क्राइम। सिर्फ एक ही अवस्था में इसमें छूट है, जब आप वो शेयर कर रहे हैं अपने अधिकारियों को या कानून एजेंसीज को रिपोर्ट करने के लिए, तब आप उससे वो तब आप पर लागू नहीं होता। तीसरा प्रावधान नॉन कॉन्टेक्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में है विलफुल कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, सेक्शन 16, यानी जब कोई व्यक्ति जानबूझकर कुछ तथ्यों को किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए या किसी घटना को दूसरा रूप देने के लिए जानबूझकर फैक्ट्स छुपा रहा है और ये साबित हो जाता है, तो ये इस एक्ट में कवर्ड है। इसी प्रकार से इंस्टिगेशन और फैसिलिटेशन ऑफ CSA, यानी किसी को उकसाना दूसरे बच्चे का चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज करने के लिए या किसी दूसरे बच्चे के चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के लिए फैसिलिटेट करना, इस तरह की स्थितियां तैयार करना जिससे वो हो सके या उसको वो कार्य में मदद करना, जाने या अनजाने में, ये दोनों ही चीजें इस एक्ट में कवर्ड है और ये सारे के सारे सेक्शन 11, 13 और 16 में कवर्ड है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दूसरा प्रावधान जो पॉक्सो एक्ट में आता है
दैट इज कॉन्टैक्ट CSA, यानी जिस चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में शारीरिक संपर्क या स्पर्श हुआ है, और इसके आधार पर कुछ डेफिनेशन दी गई है, जैसे कि सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट एंड एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इनका मीनिंग क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। सेक्सुअल असॉल्ट है जब किसी बच्चे के साथ यौन संबंध या शारीरिक संबंध बनाए गए, उसे सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में कहा जाएगा। यदि ये बच्चे के शरीर में किसी भी चीज को घुसाकर, पेनिट्रेटिव यानी बाय यूज ऑफ पेनिस और मे बी थ्रू ओरल और एनल और thrusting any object or even fingers inside the private parts of the child, ये सारा का सारा penetrative sexual assault में कवर होता है। एंड देन एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट इज कंसिडर्ड जब इस तरह का जो कृत्य है ये एक वर्दीधारी यानी पुलिस या सरकारी ऑफिशियल या आर्मी ऑफिसर के द्वारा किया जाए, तो वो एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट यानी उसको और गंभीर अपराध माना जाता है। और जब इसी तरह का कोई अधिकारी जो सामाजिक रूप से एक सरकारी पोजीशन पर है या पुलिस या आर्मी जैसे संगठनों से जुड़ा है, यदि वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का भी एक ऑफेंडर मिलता है, तो इसको फर्दर ग्रेवेस्ट क्राइम, सबसे हीनियस क्राइम इसको माना गया है कि जिस व्यक्ति को कानून की रक्षा करनी थी वही कानून का भक्षक बना। तो इस तरह से पेनिट्रेटिव जो CSA है, इसको सेक्शन 3, 5, 7 और 9 ये चार धाराएं हैं जिसमें इसको डिफाइन किया गया है, जिसमें वजाइनल, ओरल, एनल इंटरकोर्स यानी वजाइना, ओरल और एनल इंटरकोर्स को डिफाइन किया गया। देन इंसर्टिंग ऑफ फिंगर्स, हाथ या पांव की फिंगर्स या किसी भी तरह के फॉरेन ऑब्जेक्ट को प्राइवेट पार्ट्स में डालना। देन टचिंग दी प्राइवेट पार्ट्स, simple mere touching the private parts is also considered as a contact child sexual abuse. Making a child touch the private parts, किसी व्यक्ति के द्वारा बच्चे को ये कहना कि वो उसके प्राइवेट पार्ट्स को छुए, ये भी कॉन्टैक्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में कवर हो रहा है। फॉन्डलिंग, कैरेसिंग एंड ग्रोपिंग विद सेक्सुअल इंटेंट, ये तीनों चीजें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में कवर होती हैं। यानी आप ये समझिए कि किसी भी प्रकार का यदि संपर्क या स्पर्श बच्चे के द्वारा या बच्चे के शरीर पर किया जा रहा है किसी भी ऑफेंडर के द्वारा, वो इस धारा में कवर्ड होगा। नेक्स्ट प्लीज। तो पॉक्सो एक्ट पनिशमेंट्स को भी निर्धारित करता है। मैंने अगेन बहुत ब्रीफ में लिखा है। सेक्शन 3579 जो कि सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड केसेस हैं, उनमें 5 साल से लेकर लाइफ आजीवन कारावास तक का प्रावधान इसमें किया गया है। 5 years to life imprisonment एंड और फाइन, जिसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसी तरह से जो सेक्शन 11, 12 एंड 13 सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस हैं, जिसमें नॉन कॉन्टैक्ट या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज विदाउट कॉन्टैक्ट ज्यादा कवर हो रहा है, उसमें 3 to 5 years इम्प्रिजनमेंट एंड और फाइन, ये प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो दीज वर दी फ्यू प्रोविजंस जो कि इस एक्ट के द्वारा बताए गए। पर यहाँ पर मैं एक लार्जर डिबेट इस अगस्त गैदरिंग से शेयर करना चाहूंगा। जब हम पॉक्सो के अंदर एक अनजान व्यक्ति को, इस तरह के ऑफेंडर को हम मानते हैं कि बच्चे को मतलब पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाना या उसके सामने इस तरह का व्यवहार करना, ये हम दूसरे के लिए तो पनिशेबल मान रहे हैं। तो मैं यहाँ एक डिबेट थ्रो करना चाह रहा हूँ आप सबसे, और मैं आपकी राय यहाँ जानना चाहूंगा, बिकॉज ये चीज है जो मुझे बहुत प्रभावित करती है। और इसलिए मुझे लगता है जो फैमिली इन्फ्लिक्टेड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है, क्या उसको भी हमें किसी ना किसी स्तर पर रोकना चाहिए? ये मेरा मॉरल और एथिकल डायलेमा है। मैं चाहूंगा यहाँ पर मैं सभी का, खास तौर से SL जैन सर का, रुचिका मैम का, बड़ों का, इस पे मैं थोड़ा सा क्लैरिटी चाहूंगा। बिकॉज बहुत सारे घरों में मैं देखता हूँ जो OTT कंटेंट है, जो आजकल नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम या इन चीजों में आ रहा है, ये हर घर का माहौल बदले दे रहा है। मतलब जिस घर में वैसा कभी प्रचलन ही नहीं था भाषा का, उस तरह की भाषा वहां पर
बैठ करके देखी जा रही है, स्वीकार की जा रही है। तो क्या ये चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज की कैटेगरी में नहीं आता? इसी प्रकार से दूसरा एक और गंभीर चीज है जो बहुत पर्सनल लेवल पर होता है, और अक्सर एमजेएमएस की टीचर्स को ये चीजें झेलनी पड़ती होंगी जब वो देखते हैं, या इस तरह की जुड़ी हुई घटनाएं हो सकता है आपकी जानकारी में आई हो। मैंने ये पाया है खासतौर से यंग पेरेंट्स जिनके बच्चे 3 साल से 6 या 7 साल की उम्र में है, वो जब आपस में व्यवहार करते हैं, यानी जब माता पिता आपस में शारीरिक संपर्क कर रहे हैं या एक दूसरे के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो वो बच्चों की प्रेजेंस का ध्यान नहीं रखते। तो उसका जो प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, वो बालमन जो आके कॉन्शियसली सवाल पूछने की कोशिश करता है या दूसरे बच्चों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, उससे कितनी डिफिकल्टी होती है। क्योंकि मैं आपसे एक केस यहाँ पे शेयर करूंगा, ये 2004 में हुआ था मेरे साथ, बहुत सेंसिटिव केस है, मतलब मैं हिल गया था इस केस से। मेरे पास एक 8 साल के बच्चे को लाया गया, 8 साल का बच्चा जो कि एडिक्टेड था उस टाइम पर, जो ये जी और स्टार मूवीज और एचबीओ की अडल्ट मूवीज आती थी, वो जब माँ बाप सो जाते थे वो टीवी चला के वो मूवीज देखता था, 8 साल का बच्चा जिसको इंग्लिश समझ नहीं आती। और जब ये माँ बाप मेरे पास लेकर आए तो इसका बेसिक कारण यही निकला था कि जब वो बच्चा ग्रोइंग अवस्था में था तो उसकी sorry, there was a call, I'm sorry, yeah, am I audible? Am I Yes, sir. audible? Yes, sir. Yes, sir. तो ये उन पेरेंट्स को मैंने फिर उसके बाद जब काउंसिल किया तो मुझे करीब 6 महीने लगे उस बच्चे को ठीक करने में। पर बहुत कुछ तभी हो पाया जब पेरेंट्स ने अपनी गलती स्वीकार करी और अपने तरीकों को बदला। तो मैं यहाँ आप सबकी राय जानना चाहूंगा कि जो परिवार द्वारा ये जो बच्चे के ऊपर अडल्ट कंटेंट थोपा जा रहा है, अडल्ट माहौल थोपा जा रहा है, क्या ये भी पॉक्सो में आना चाहिए या इसके लिए हमें किसी और तरह की इनिशिएटिव लेने की जरूरत है? आई इनवाइट योर व्यूज। Sir, I definitely feel that it should be included in POCSO because in the end of the day, the child's mental health is getting there's an issue in that. So I definitely feel that it should be a part of this act. Anybody else? Rita ma'am, please stop screen sharing so that we can see each other. Sir, I am not very sure whether it can be included or not, because I am looking at larger social fabric also. I do not know how much receptivity would be there from the part of the parents, how much struggle as a school or as educators we'll have to do, because making them understand even the protocols in the school, these kind of protocols in the school sometimes become very difficult. So sometimes when we are having gender sensitivity workshops also, some parents are very receptive, some parents do not like it. So since we are dealing with many kind of parents, I am not very sure whether this kind of interference, if not stated by law, would be welcomed by the parents or not. जी, मैंने मैम इस चीज को पॉइंट ऑफ डिस्कशन इसलिए बनाया, मैंने इस पे अतुल जी से लीगल व्यू भी लिया था एंड उन्होंने कहा था कि पारिवारिक रूप से इस तरह की किसी चीज को पॉक्सो एक्ट जो है वैलिडेट नहीं करता। बट बहुत सारी चीजें जो प्रैक्टिकल अनुभव में आती हैं सामने, जो मैं अभी आने वाली स्लाइड्स में और शेयर करूंगा, 2-3 स्लाइड्स अभी बाकी हैं, तो मुझे जो लगता है अनुभव के आधार पर कहीं ना कहीं स्कूल सिस्टम्स को इस चीज के लिए तैयार होने की जरूरत है। क्योंकि अब जब 1.5 या 2 साल के बाद स्कूल खुलेंगे, जब भी खुलेंगे, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, जब भी खुलेंगे, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आएगा कि बच्चों की भाषा में
और उनके कंडक्ट में विकृति आ चुकी होगी, नंबर 1। दूसरा, उनका लेवल ऑफ डेलिंक्वेंसी बढ़ चुका होगा, उनका ओवरऑल एक्सेप्टेंस ऑफ मैल एडेप्टिव बिहेवियर वो बढ़ चुका होगा। तो कहीं ना कहीं स्कूल से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि बच्चे को सुधार दो, बच्चा ये करने लगा है, अब क्या करें। तो जब स्कूल को उस दिशा में जाना होगा तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज पर एक लार्जर डिबेट में भी अलग अलग फोरम्स पे या अपने आपस में शुरू तो करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं हमें खुद रोल मॉडल्स यहाँ बनना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। एनीवेज, कमिंग बैक टू स्क्रीन शेयर। नहीं आशीष, इफ आई मे इंटरफियर, सर वेलकम। ये इशू जो है ना, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। एक बार कुछ साल पहले, 15 साल पहले करीब, ये शीला दीक्षित गवर्नमेंट ने सेक्स एजुकेशन के बारे में सारा प्रोग्राम बनाया था कि स्कूल में, क्योंकि जब इसकी चर्चा होगी स्कूल के अंदर, अगर सेक्सुअल एजुकेशन पढ़ाई जाए या काउंसलिंग की जाए, तो बच्चों को बहुत सारी चीजें वो बतानी पड़ेंगी, जो कि इंटेंशन का उसके अंदर एक सवाल आ जाता है। लेकिन खैर वो बाद में जब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गई और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया ये प्रपोजल ऑफ सेक्स एजुकेशन का, तो उन्होंने इसको मना कर दिया और इसके ऊपर बहुत तैयारी हुई थी। मैं भी उस कमेटी का मेंबर था और हम लोग तो खैर फेवर में थे, लेकिन ये सतपाल पहलवान और इस तरह के काफी लोग और एक बीजेपी की, सबने इसको मना कर दिया। अब ये जो प्राइवेसी की बात है, घर की बात है, अच्छा ये शारीरिक जो हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं उनके अंदर बच्चों का एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना, ये होना, फिर उनके अंदर इंटरफियर करना। अच्छा कई दफा क्या होता है कि माँ बाप जो है वही मना कर देते हैं, बच्चा भी बाद में पलट जाता है और वो सारा ओनस जो है वो आ जाता है टीचर के ऊपर। लेकिन जो सारी की सारी बातें आपने इतने डिफिकल्ट इशू के ऊपर, बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है ये, और इस कॉम्प्लेक्स इशू को एक एक स्लाइड के माध्यम से समझाया है जिस तरह से, और जिस तरह से आपकी अभिव्यक्ति रही है, the way you have expressed and translated each and every word from, तो ये ठीक को जो पोक्सो का प्रेजेंट फॉर्म है इसको ही एक्सपेरिमेंट किया जाए। क्योंकि देखिए जो चाहे कितने ही जो फॉरेन कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, फुल्ली डेवलप्ड हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, उनके यहाँ भी इस तरह के क्राइम्स बहुत हैं और यहाँ से ज्यादा हैं। अब जैसे टेलीविजन देख रहे हैं हम, अब एक पिक्चर देख रहे हैं, एडल्ट पिक्चर, अब बच्चा आ गया, वो भी बैठ गया, अब उसको स्विच ऑफ किया जाए या बच्चे ने देख लिया या उसको, तो ये अब बच्चा ही कंप्लेंट करेगा। तो क्योंकि अदरवाइज इसको कॉग्निजेंस लेना या वो करना, तो ये एक फिर क्या होता है कि जैसे अभी रुचिका जी ने कहा कि भी अलग है, फिर जो रूरल एरियाज हैं उनका अलग है, फिर ट्राइबल एरियाज का अलग है, उन सब की जो धारणाएं बनी हुई हैं वो धारणाएं आपस में अलग अलग हैं, और इस इशू के अंदर जो पर्सनल धारणाएं हैं वो बहुत मायने रखती हैं। क्योंकि जिस तरह के ट्राइबल एरियाज के अंदर थिंकिंग है और जो साउथ दिल्ली की या बहुत एडवांस्ड फैमिलीज के अंदर थिंकिंग है वो एकदम अलग है। तो अब एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि कपड़े पहनने की, विचारों की, एक्सप्रेशन की, दूसरी तरफ उस सब चीजों के साथ साथ होते हुए हमारा जो व्यवहार है वो भी इतना कंट्रोल्ड हो, इतना कंट्रोल्ड हो कि भाई एक पार्टी जो है वो विक्टिम ही बन जाए दूसरी पार्टी के। क्योंकि इसमें जो बहुत सारा है, कई दफा क्या होता है कि जो विक्टिम है और जो ऑपरेसर है उसका भी पता नहीं चलता कि क्या फर्क है क्या नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को कई जगह कहा है कि भाई इस चीज को भी थोड़ा देखना चाहिए। तो जो आपका मुख्य बात है वो ये है कि भाई ये जो घटनाएं हैं ये प्रिवेंटिव होनी चाहिए, और अगर होकर के नॉलेज में आ जाए तो उसके ऊपर पूरी एग्रेसिव तरीके से एक्शन लेना चाहिए। उनको अंडर द कारपेट स्वीप करना ये एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है, और हमें इसके अंदर थोड़ा बोल्ड होकर के काम करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि प्रिवेंटिव, और इनको टीचर्स को ट्रेन करना, बच्चों को ट्रेन करना, उसके कंटिन्यूअस प्रोग्राम करना, ये जो है ये बैठ करके एक अलग वार्ता का इशू बनेगा
मेरी 2-3 स्लाइड्स हाँ। पेंडिंग है सर, अगर आप इजाजत दें प्लीज, तो उसी पे हाँ, आगे और मैं explain करता हूं। जी प्लीज आई स्टार्ट एम दी थ्रू। स्क्रीन शेयरिंग अगेन प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर। जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ स्कूल क्या बनता है अगर हम पॉक्सो को यानी प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस को स्कूल के रोल के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो क्या क्या हम कर सकते हैं। तो पहला इसमें पैराडाइम आता है प्रिवेंशन का। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में सबसे पहला क्रिएट चाइल्ड सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कैमरास लगाना, ब्लाइंड स्पॉट्स पर मैनेज करना, या टॉयलेट में मार्शल्स का होना, या डिस्पर्सल के टाइम पर, या अलार्म बेल्स होना, इस तरह की चीजें हम सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन द स्कूल क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ इंक्लूडिंग द नॉन टीचिंग स्टाफ। तो जो भी हमारा स्टाफ है उनकी हम ट्रेनिंग रेगुलरली कर सकते हैं, उनको इसके बारे में और इसके जुड़ी हुई नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हम समझा सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है क्रिएट एंड इंप्लीमेंट टू पॉलिसीज, वन द चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी एंड सेकंड द सेफ रिक्रूटमेंट पॉलिसी। ये एक स्कूल के तौर पर हम कर सकते हैं, जिसमें हमें क्या करना चाहिए, वी शुड इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स इन दीज कमिटीज, वी शुड कस्टमाइज द नीड्स एज पर अवर स्कूल, and we should have adequate procedure of psychometric assessment or psychometric tools where we can implement these tools to ensure child protection and safe recruitment. Next, education of children for their protection and their reporting. बच्चे को अपनी सुरक्षा और उस चीज की रिपोर्टिंग के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। देन प्रोवाइड अनप्रेजुडिस्ड रिपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है जिसमें बार बार जब कोई घटना होती है तो अखबारों में भी आता है कि स्कूल में कंप्लेंट सेल होना चाहिए, कंप्लेंट बॉक्स होना चाहिए जहां कोई भी बच्चा अननेम्ड कंप्लेंट डाल सकता है। तो ये भी समय समय पर करता किया जाता रहा है, बट कहीं ना कहीं ये चीजें ठंडी पड़ जाती हैं। एंड देन लास्टली कंडक्टिंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज असेसमेंट एंड ऑडिट्स, जिसका हम रिकॉर्ड रखें और हर साल का रिकॉर्ड रखें। जैसे एनुअल हेल्थ चेकअप्स होते हैं वैसे ही एनुअल या पीरियोडिक ऑडिट्स और असेसमेंट इस चीज के ऊपर होने चाहिए। ये प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं जो कि एक स्कूल एज टीचर्स हम उठा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी तरह से इंटरवेंशनल स्टेप्स भी हैं। कोई चीज अगर घट रही है तो उसको हम कैसे अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं। जैसे नोटिसिंग द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ सीएसए, बच्चे के अंदर उन सिम्टम्स को पढ़ पाना कि बच्चा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से गुजर रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। देन एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू द विक्टिम, यानी जो भी बच्चा इस तरह की घटना का शिकार है उसको सपोर्ट देना। देन मैंडेटरी रिपोर्टिंग एंड रिजोल्यूशन, हम एज टीचर्स शांत रहना बंद करें, हम इस चीज को लाइमलाइट में या इसको रिपोर्टिंग मैकेनिज्म में लाने का कोशिश करें। देन सेंसिटिव एंड कॉन्फिडेंशियल हैंडलिंग, बच्चे की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको मेंटेन करते हुए बच्चे के साथ एक बड़े संवेदनशील तरीके से इन घटनाओं को डिस्कस करके उसको रिपोर्ट करें या उसको तैयार करें। मेडिकल एंड रिहैब सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने स्कूल में हम तैयार करें। और ब्लॉक दी एब्यूजर एंड चाइल्ड कॉन्टैक्ट, अगर हम जानकारी में आता है तो हम हर तरीके से बच्चे का उसके एब्यूजर के साथ संपर्क तोड़ने में मदद करें। ये सारी चीजें हैं जो हम एज स्कूल पेरेंट्स को सिखा सकते हैं, बच्चे को सिखा सकते हैं या खुद कर सकते हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट सबसे पहलू आता है कि बच्चे के अंदर साइंस और सिम्टम्स सेक्सुअल अब्यूज के क्या हैं जो एज टीचर या पेरेंट्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेट अस ऑब्जर्व दीज। सबसे पहला पुअर अटेंडेंस, अचानक एक बच्चा एब्सेंट रहने लगता है, पुअर अटेंडेंस रिकॉर्ड शुरू हो जाता है, दैट कैन बी वन ट्रिगर। सेकंड, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंजेस, जैसे बच्चे की पर्सनैलिटी अचानक बदल गई हो, ऐसे बिहेवियर में बदलाव अगर बच्चे के दिखने लगे तो, या रिग्रेसिव बिहेवियर्स बच्चा शो करता है जैसे बेड वेटिंग या क्लास में यूरिनेट कर देना, इस तरह की सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, या बच्चा रोना या नर्वसनेस बहुत शो कर रहा है। देन सडन डिसलाइक टू पर्सन्स एंड प्लेसेस, बच्चा अपने से जुड़े हुए कुछ व्यक्तियों या कुछ स्थानों पे जाना या उनसे बात करना, इंटरेक्ट करना पसंद नहीं कर रहा, और वो कह रहा है मुझे नहीं जाना वहां पर, मुझे नहीं जाना इस वैन वाले भैया के साथ, मुझे नहीं जाना इस आया के साथ, मुझे जाना ही नहीं उस जगह पे। अगर वो ऐसा कुछ कह रहा है
तो वहां पर हमारा दिमाग अलर्ट होना चाहिए। देन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक्यूमुलेशन ऑफ गिफ्ट्स। बच्चे के पास अगर कोई एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ गिफ्ट्स आपकी नॉलेज में आता है, तो बच्चे के पास वो गिफ्ट कहाँ से आ रहे हैं और क्यों एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो पहले 5 पॉइंट है, ये बिहेवियर और टेम्परामेंट से जुड़े हुए हैं, जो हम एज टीचर एंड पेरेंट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद 6 से 9 नंबर तक के पॉइंट्स जो हैं वो होते हैं एक्सप्रेशन एंड कंडक्ट। बच्चे का एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति किस तरह की हो रही है, आप उसको देखें तो ओवर अटेंशन और पुअर अटेंशन टू सेल्फ अपीयरेंस, यानी बच्चा यदि अपनी खुद की अपीयरेंस के प्रति या तो ज्यादा जागरूक हो रहा है या बिल्कुल लापरवाह हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। दूसरा, सडन एक्ट्स ऑफ वैनिशिंग एंड अनयूजुअल एब्सेंस। जैसे पता चला क्लास से ग्राउंड में जाना है बच्चों को, अचानक एक बच्चा गायब हो जाता है, हर बार गायब हो जाता है, तो वो कहाँ जाता है, क्या करता है, इस तरह की चीजों को चेक करना, ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। देन प्रेजेंस ऑफ द चाइल्ड एट अनडिजायरेबल और सेक्लूटेड प्लेसेस विद इन द स्कूल पेरिफेरी और मे बी एट होम, जैसे कि छतों पर, या बच्चा कहता है मैं अचानक बच्चों को नाइट वॉक का शौक चढ़ा है, मैं नाइट को वॉक करूंगा, छत पे जाके वॉक करूंगा। तो इस तरह की चीजों को अनडिजायरेबल या सेक्लूटेड प्लेसेस पे बच्चे की प्रेजेंस को चेक करना जरूरी है। देन ओवर एक्सेप्टेंस या एडमिरेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। जब बच्चा किसी पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर को ओवर एक्सेप्ट या एडमायर करने लगता है और उसका वर्बल एक्सप्रेशन भी उस तरफ जाने लगता है, खास तौर से वैन ड्राइवर्स, ट्यूटर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स या होम मेड्स, इनके प्रति, तो वहां पर आपको अलर्ट होने की जरूरत है। ये वो एक्सप्रेशन एंड कंडक्ट रिलेटेड चेंजेस हैं जो तुरंत आपको अलर्ट करना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसके बाद आता है जो बच्चा एक्चुअली सीएसए का विक्टिम बना है, तो उसको जो इंजरी होती है उससे रिलेटेड कुछ फैक्टर्स हैं जो 10 से 12 तक मैंने कंसिडर किए हैं। बच्चे का थका हुआ रहना, फटीग और स्लीपिंग डिफिकल्टीज। एक बच्चा अचानक थका थका रहने लगा है या सोया सोया रहने लगा है, या बच्चे का चलना और बैठना डिफिकल्टी से हो रहा है, चलते हुए वो लंगड़ा रहा है या बैठते हुए वो अनकंफर्टेबल है। एंड तीसरा, इंजुरीज, अगर बच्चे को चोट लगी है खास तौर से इन एंड अराउंड प्राइवेट पार्ट्स, तो यहाँ पर अलर्ट होने की जरूरत है। फिजिकल एग्जामिनेशन की, मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत है, जो कि हम एज टीचर या पेरेंट्स करवा सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो है वो है 13th पॉइंट, जिसको हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अगर बच्चा 2 सिम्टम्स शो करता है, सडन साइलेंस और नीड फॉर सीक्रेसी, तो यहाँ पर आपको बहुत गंभीरता से अलर्ट हो जाना चाहिए कि बच्चे के साथ कहीं तो कुछ सीएसए से रिलेटेड गलत हो रहा है। एंड लास्ट स्लाइड। नाउ ये लास्ट स्लाइड मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जिसमें मैं वो बातें शेयर कर रहा हूं जो मैंने पिछले 18 से 20 साल के अनुभव में पाया कि किस तरह की प्रोफाइल के लोग ज्यादा चांसेस हैं या लाइक्लीहुड है कि वो ऑफेंडर्स हो सकते हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस के। तो ये मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ, आई डोंट हैव प्रेजुडिस टुवर्ड्स एनीबॉडी। ये मैंने जो ऑब्जर्व किया है मैं सिर्फ वो शेयर कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है ऐसा हो, बट मैंने ऐसा पाया कि जो लोग इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एब्यूजेस करते हैं, यानी जिनकी हर एक बात में 4 गाली आती हैं, बिना किसी कारण के आती हैं, बिना किसी प्रोवोकेशन के आती हैं, ऐसे लोग सेक्सुअल ऑफेंस की तरफ ज्यादा प्रोन होते हैं। दूसरा, डे टाइम ड्रिंकर्स, जो लोग दिन के समय में नशा करते हैं, वे भी सेक्सुअल क्राइम्स के प्रति ज्यादा प्रोन होते हैं। तीसरा, कैजुअलनेस प्रोमोटर्स या अबैटमेंट प्रोवाइडर्स, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हमारे अपने सर्कल में कई बार ऐसा होता है जो एक घटना से अगली घटना को गिरा के करने में बड़ी तीव्रता से प्रमोट करते हैं ग्रुप बिहेवियर को। उदाहरण के तौर पर शर्त लगाना, कि अगर एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति आपस में शर्त लगा रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति अचानक कूद के उस शर्त की क्वालिटी को गिरा देता है, या 2 व्यक्ति एक चीज डिस्कस कर रहे हैं, वो व्यक्ति वहां जाकर उस घटना के स्तर को गिरा देता है। ये लोग जो है कैटलिस्ट का काम करते हैं, अबैटमेंट या उस स्थिति की गरिमा को गिराने का काम करते हैं। ऐसे लोग हमारे हर जगह, हर माहौल में, परिवेश में मौजूद होते हैं। दे वुड थ्रो सजेशन एंड जब लोग पसंद नहीं करते, दे वुड टेक इट बैक, से सॉरी एंड गेट अवे विद इट।
इस तरह के लोग जो हैं दे आर ऑल्सो प्रोन टू सेक्सुअल क्राइम्स। चौथा, अडल्ट्स, ऐसे बड़े लोग जिनकी हिस्ट्री है ऑफ डिफिकल्ट चाइल्डहुड और पुअर पेरेंटिंग, वो साइकोपैथोलॉजीज कैरी कर सकते हैं। एंड लास्टली, ऐसे लोग जहां पर लॉन्ग टर्म सेक्स डिप्रीवेशन है ड्यू टू मे बी death of the spouse or due to maybe separation or maybe no marriage or any reason for that matter, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जहां एक लॉन्ग टर्म सेक्स डिप्रीवेशन है और वो बच्चों के संपर्क में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इस घटना को एंटीसिपेट कर सकते हैं। ये 5 तरह के फैक्टर्स ऐसे हैं जहां पर अगर हमें ये चीज दिखती है तो हमें थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। जरूरी नहीं है इस तरह के व्यक्ति सारे ऐसे हों, ये जरूरी नहीं है, बट मेरे अनुभव में मैंने पाया कि ये इस तरह की प्रोफाइल के लोग ज्यादा प्रोन होते हैं सेक्सुअल क्राइम्स करने के। एनीवेज, मैंने आज अपने सारे परिप्रेक्ष्य आप सबसे डिस्कस किए। कुछ जगह मैं सही हो सकता हूँ, हो सकता है कुछ बातें किसी को अप्रिय लगी हों। मैं चाहूंगा सब इसे पॉजिटिवली लें, और अगर कोई भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन है या कोई सवाल है तो आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। थैंक यू। Thank you so much, Ashish sir. We highly appreciate your thoughts on the POCSO Act. Now I request the staff members to kindly ask their queries, if any. You may please write your queries in the chat box. Ashish sir, I have a question here. Yes, ma'am. If there is a child and the child is in senior classes, and if we get to know that the child is in a relationship with one of the teachers, right? But the child does not have any problem. He is very comfortable, in that relationship. But according to POCSO Act, obviously the child is underage, under 18 year of age. So how to report such matters, because when such incidents are seen, generally parents are also not getting involved, because the child is in senior classes, they also don't want to get involved in these things, and teacher is also comfortable, she is also okay, बच्चे को भी कोई problem नहीं है, वो भी कुछ report नहीं करना चाहता है. How do we handle these situations? देखिए, पहली चीज, जब भी नीड ग्रेटिफिकेशन दोनों तरफ से हो रही है और दोनों की नीड ग्रेटिफाई हो रही है, तो यूजुअली इट इज कंसिडर्ड एज अ हैप्पी रिलेशनशिप। इससे मतलब किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही, और अगर आप बच्चे को कन्फ्रंट करेंगे तो भी आएगा आपको क्या, और टीचर को कन्फ्रंट करेंगे तो भी जवाब आएगा आप अपने काम से काम रखो, राइट। बट हमारी जिम्मेवारी यहाँ पूरी नहीं होती। अगर हमारे प्रीव्यू में ऐसी कोई भी चीज आती है तो हमें या तो अनोनिमस रूप से या सामने आकर तरीका हम चूज कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मैं तो कहूंगा कॉन्फिडेंटली यू मस्ट रिपोर्ट इट टू द अथॉरिटीज, स्कूल अथॉरिटी, एंड यू मस्ट आल्सो ब्रिंग इट टू द कॉग्निजेंस ऑफ द पेरेंट। बट अगर आपको लगता है अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से आपको सामाजिक या दूसरे तरीके के रिटेलिएशन को फेस करना पड़ सकता है, तो यू कैन डेफिनेटली चूज द anonymous way, and you can use the complaint cell or complaint box mechanism and write your complaint or type your complaint and report the matter and bring it to the notice of authorities, because ऐसी कोई भी रिलेशनशिप आप ये समझ लीजिए हमेशा उसमें 1 2 3 का फॉर्मूला रहता है। 1 मतलब जब वो रिलेशनशिप शुरू हुई और नीड ग्रेटिफिकेशन हो रहा है तो अच्छा चलता है। फिर 2 होता है जब किसी एक की नीड ग्रेटिफिकेशन पूरी नहीं होती तो वहां शिकायतों का दौर होता है, और तीसरा जब दोनों के बीच में संबंध खराब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आसपास से जुड़ी हुई हर चीज के ऊपर प्रभाव आता है। तो हर ऐसी रिलेशनशिप के दुष्परिणाम हैं। आप साइकोलॉजी के बैकग्राउंड से आप इस बात को समझ सकती हैं।
तो ये सब चीज़ों की जो जो टेन्योर है बहुत लिमिटेड रहती है, और इसलिए मुझे लगता है हमें अपनी जिम्मेवारी को पूरा करना चाहिए। So you say that reporting is mandatory in such cases also. Thank you, sir. यस। Sir, एक और मेरी query है. This is my personal observation also that teachers do not report such incidents because POCSO Act is itself a legal action, and teachers are scared that if they are reporting they'll be involved in a lot of legal things. उनको शायद पुलिस स्टेशन जाना पड़े, शायद कोर्ट में रिपोर्ट करना पड़े. इस वजह से भी टीचर्स जो हैं अवॉइड करती हैं कि उनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ना हो. So any tips you would like to share on this topic, your views? अगेन जैसा मैंने अभी आपको कहा, कायदे से तो हम सबको स्ट्रांग बन के अपने फर्ज को विद आइडेंटिटी बताना चाहिए, क्योंकि उससे वो जो भी आप शिकायत कर रहे हैं वो एक क्रेडिटेबल शिकायत बन जाती है। ठीक है, जब एक व्यक्ति बिना किसी बायस के किसी एक चीज को रिपोर्ट कर रहा है तो वो एक क्रेडिटेबल कंप्लेंट मानी जाती है। ठीक है, बट अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो भी मुझे लगता है अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागना चाहिए, एनोनिमस रहते हुए भी आपको शिकायत करनी चाहिए। एटलीस्ट आप उस घटना को लाइमलाइट में ला रहे हैं, प्रकाश में ला रहे हैं, जिससे कुछ लेवल तक, कुछ हद तक वो डेटर करेगा सामने वालों को वो गलती करने से। Thank you, sir. Thank you. जी। Any other questions? Yeah, Richi, I would like to ask, sir, जो अभी रिची मैम ने कहा, मेरी ऑब्जर्वेशन उससे स्लाइटली डिफरेंट है. आई थिंक टीचर्स आर नॉट फियरफुल ऑफ द फैक्ट दैट कि कोर्ट में जाना पड़ेगा या ये सब चीजें होंगी. यहाँ पर जो मुझे लगता है कि सेंसिटिविटी, कई बार आपका अपना रिलेशन, कई बार टीचर्स को ऐसा लगता है दैट दे विल बी एबल टू सॉर्ट आउट द मैटर एट देयर ओन लेवल. तो वो एक गलती जरूर टीचर्स करती हैं, दैट रिपोर्ट वहां नहीं होती. So sometimes, when the incident comes to limelight, तो ये बताया जाता है कि 2 महीने पहले भी या 2 साल पहले भी ऐसा हुआ था, but then I had handled it. तो वो एक अलग तरीके की सेंसिटिविटी है जहां पर टीचर्स आउट ऑफ एम्पैथी they try to do it on their own rather than fear factor. तो ये जब अब हमें बहुत क्लियर है कि now it is a legal requirement that we have to report it, right? And we are not equipped also. जी sir. Allow me to give an input here. जैसे सपोज कीजिए आप किसी ऐसे केस को डील कर रहे हैं जहां पर पॉक्सो एक्ट लग चुका है और लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं. अगर उस वक्त पर कोई भी पर्सन जो कि इस केस का हिस्सा बन जाता है जाने में या अनजाने में, और वो ये कहता है कि ऐसा हुआ था पर मैंने तब खुद हैंडल कर लिया था, देन दिस कैन एक्चुअली गो अगेंस्ट द पर्सन. So this should be kept in mind. Right, right. एंड सर जो फियर फैक्टर है वो मेरे हिसाब से जो जैन सर ने कहा वो बिल्कुल ठीक बात है, दैट समटाइम्स पेरेंट्स एंड स्टूडेंट देमसेल्व्स चेंज द स्टेटमेंट आफ्टर लिटिल व्हाइल. वो एक बहुत बड़ी बात है दैट टीचर्स फाइंड हरसेल्फ सराउंडेड बाय दैट. मतलब जो अभी सर ने कहा, आई कुड एक्चुअली आइडेंटिफाई विद दैट सिचुएशन कि वो टीचर ही वहां अकेली रह जाती है. थोड़े दिनों बाद पेरेंट भी अलग हो गया, पेरेंट रिट्रैक्ट कर गया अपनी स्टेटमेंट से, बच्चे ने भी अपनी स्टेटमेंट बदल दी, और बच्चे की स्टेटमेंट का तो फिर भी ये कह दिया जाता है कि वो तो चलो छोटा बच्चा था, he might have misunderstood, he might have misquoted, he might have misstated, there are so many things, but ultimately फिर वो एक टीचर के ऊपर बहुत ज्यादा ओनस आ जाता है. वो टीचर उस प्रीव्यू में आ जाती है कि perhaps she has done it deliberately, that is the misreporting part, or she has brought this to limelight, otherwise this was not such an important thing that was happening. देखिए, पहली चीज, कोई भी टीचर जो इस तरह का रिपोर्ट कर रही है वो बधाई की भी पात्र है और वो गलत नहीं कर रही. मैं ये बात आपसे रिएटरेट करूं. दूसरी चीज, जब कोई टीचर इस तरह से करती हैं या बताती हैं, तो द वे यू रिपोर्ट योर कंप्लेंट शुड बी वेरी वेरी ओपन एंडेड. इट शुड ऑलवेज बी इन अ मैनर दैट should invite investigation rather than it is directly inflicting a opinion on someone. And at the same time you should always do it with the angle of that things are subject to investigation. और जहां तक बात आती है रिट्रैक्ट करने की,
मैंने आपकी बात मान ली, सपोज आपने आज कुछ गलत देखा और आपने वो कंप्लेंट किया, तो प्रिंसिपल की जानकारी में आया, प्रिंसिपल ने पेरेंट को, बच्चे को, टीचर को, तीनों को बिठाया, डिस्कस किया, और थोड़े टाइम बाद बच्चे ने अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली, पेरेंट ने अपनी टीचर कहा भाई मैं ज्यादा परस्यू नहीं करना चाहता, तो कई बार टीचर अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है कि यार ये क्या हुआ। तो यहाँ पर मैं आपसे इतनी सी बात कहूंगा, नहीं, यहाँ पर अपने आप को आप हर्ट या ठगा हुआ महसूस ना करें। रीजन बीइंग, आपका फर्ज था उस सिचुएशन पे वो करने का, और आपका पर्पस था कि वो घटना वहीं रुक जाए। जब एक बच्चा और एक पेरेंट खुद संभल गए तो कहीं ना कहीं वो पर्पस अचीव हो रहा है। मैं मानता हूं हर चीज को आप पनिशमेंट के लेवल तक नहीं ले जा पाते, ये होता है, बट एट द सेम टाइम ये भी आप समझ लें कि यही वो घटना यदि आउट ऑफ हैंड चली जाए या वो एक्चुअली कानून के दायरे में आ जाए, तो यही टीचर आपके संगठन का, आपके विद्यालय का और सबका बचाव का भी कारण बनेगा। इसलिए हर सच कंप्लेंट, एवरी सच कंप्लेंट which has been brought to the notice of authority has value and it should be recorded and it should be well preserved as a record for at least 10 years. Another thing that I feel is why students and why this is not reported also is Please repeat it. Please labeling. repeat it. I missed your voice. Please repeat it. Somebody muted me, so that is not a problem. Sir, I am saying that another thing that I feel that it is not reported is the fear of labeling. और वो लेबलिंग, चलो हम जब स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो अलग बात है, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि जब हमारे साथ ऐसा कुछ शेयर कर रहा है तो हमें उसे बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होने देनी। You explained all of that very properly. As teachers, as educators, we might be able to handle that. But parents and students themselves, they are scared of labeling at several levels. पेरेंट्स फैमिली के बारे में सोचते हैं कि हमारे बारे में सब क्या बात करेंगे, बच्चे की आगे शादी होगी या नहीं होगी, सोशल बॉयकॉट तो नहीं हो जाएगा। बच्चा भी अपने पीयर ग्रुप के बारे में सोचता है, और इसीलिए मुझे लगता है बहुत सारे केसेस अनरिपोर्टेड जाते हैं जो कि बाद में पर्सनालिटीज में किसी ना किसी गलत तरीके से डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो सकते हैं, होते ही हैं। तो हाउ टू डेवलप दैट कॉन्फिडेंस एटलीस्ट अमंग्स चिल्ड्रन? वी कैन नॉट हेल्प पेरेंट्स अ लॉट, बट एटलीस्ट बच्चा तो आकर काउंसलर से बात करे, अपने क्लास मेंटर से बात करे, जिस भी टीचर से उसका कनेक्शन है वो वहां पर बात करे। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? मैम, इसको करने का सिंपल तरीका है, एज टीचर्स हम अपना डर त्याग दें। द मोमेंट वी क्विट आवर फियर, वी विल बिकम रोल मॉडल्स फॉर दीज चिल्ड्रन टू गो एंड यूज दैट। हमारे सामने तो समस्या ये आती है कि अगर आज हम स्कूल में ऐसा एक कंप्लेंट बॉक्स रख दें तो 10 महीने तक, 12 महीने तक उसकी धूल भी साफ नहीं होती। तो पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि हमारे अपने दिल में, दिमाग में इतने भूत हैं इसके कि हम खुद डरते हैं। तो जब हम खुद डर रहे हैं तो बच्चा भी तो हमें ही देख रहा है। When I am seeing my teacher not comfortable reporting it, then how can I expect me to be comfortable reporting it? Sir, but expecting an overnight transformation amongst the teachers and ourselves is also very difficult. We are also a byproduct of this society. We also have that innate fears. It will go over a period of time. It is not like I give this magic wand and then everybody says, no, today I am brave. 100% सही है मैम, ये कोई मैजिक वॉन्ड से नहीं हो सकता। जैसे मैं अपने ऊपर लेकर बोलता हूँ, I am usually perceived as a very outspoken person and मैंने ये रेपुटेशन बहुत मेहनत से कमाई है। बहुत से लोग मुझे हानिकारक भी समझते हैं और बहुत से लोग समझते हैं कि शायद नहीं उलझना बेहतर है। बट जिन जिन लोगों ने मुझे बरता है, क्योंकि इस पूरे परिवार में, मेरी इन सभी टीचर्स के परिवार में सबने मुझे कभी ना कभी बरता है। दे हैव फाउंड कि जो परसीव्ड इमेज थी और जो एक्चुअल था वो एंटायरली डिफरेंट था। यही चीज धीरे धीरे हम सबको अपने अपने अनुभव के आधार पर आती है, ऐसा मैं मानता हूँ। कोई जरूरत भी नहीं है कि अचानक सब कुछ बदलना है और कोई जरूरत भी नहीं है कि अचानक जादू सब पर हो जाए, ये जरूरत नहीं है। पर मैं अपने अनुभव में जो चीज होते हुए देखता हूँ, जब विद्यालय खुलेंगे अब लॉकडाउन के बाद, तो अगले 2 से 5 साल हम सभी टीचर्स और हम सभी परिवारों के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं। और इसमें एक ही हथियार बनेगा कि हम खुल के
किससे और कितनी बात कर सकते हैं, और वो अगर हम कर पाए तो हम बहुत सारी जगहों पर दुर्घटनाएं और दवाइयां अवॉइड कर पाएंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं हमें दुर्घटनाएं और दवाइयां फेस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। Richie, Thank over you, to you, sir. please. All of you are requested to fill a small feedback form about the workshop. It is compulsory for all. You will be provided the e-certificates for this workshop. Please find the link for the feedback form in the chat box. I would now request Chiranjeev ma'am to present the vote of thanks. Okay. Thanks, Richie ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Good afternoon, everyone. Thank you so much, sir, for this wonderful and insightful session. It is really very important and sensitive topic. It is a need of the hour to sensitize ourselves with this issue. The presentation shown by you were very informative. You explained this topic so well in a very simple and interactive way by sharing your experiences. And we need to understand that repeated trauma in childhood forms and deforms the personality of a child. So all of us have to safeguard the interest of the child at every stage. Team MSMS and MJMS assure you that we will take care of all the points discussed in today's workshop. Once again, we extend our heartfelt thanks to you. We would like to express profound gratitude to our respected Jain sir and Prashant sir for their presence and sparing their valuable time. We are grateful to our dynamic, vibrant, energetic principal, Ms. Ruchika Sukija, to organize this workshop and make each one of us to reiterate the significant issue. And I'm also grateful and special thanks to all the staff members from MSMS and MJMS for their active participation and sharing their concern regarding this delicate issue. Once again, thanks to everyone. Have a nice day. Thank you.